So yeah. So the field of auditing as a discipline in simple words involves review of various assertion, which we saw. Assertion is a representations by the management embodied while giving a financial. It couldn't be explicit or assumed otherwise, explicit or otherwise, है ना? ठीक है. Both in financial as well as non-financial terms, with a view to prove the veracity of such assertion and expression of opinion by the auditor on the same. So this is what auditing and other disciplines, that's why it's very important. We are not only auditing financial but non-financial data also, and we have to see the how those relationship exist. So पहला है accounting, इसमें question आने का chance very rare है, but yes, sometimes they can ask how behavioral science and auditing ka. So these are the, so accounting, if they ask, you can explain easily. Law you can explain easily because you have to see laws, regulation. Economics, behavioral science, statistics, mathematics. I think statistics be also, if you learn पूरा audit का subject, ये आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या आंसर लिखना है. बट इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल साइंस समटाइम्स इज चैलेंजिंग. सो लेट्स सी. पहले तो अकाउंटिंग सिंपल. ऑडिटिंग वर्सेस अकाउंटिंग का क्या है? ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच आर नथिंग बट एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस. हमने ऑलरेडी देखा जीएल, सोर्स डॉक्यूमेंट, जीएल, सब जीएल, राइट. फिर टीबी बनता है, टीबी से एफएस बनता है, और एफएस को हम ऑडिट करते हैं. हम एफएस को ऑडिट बोले तो हम ये सबको ऑडिट करते हैं, और इसमें सबसे इन्वॉल्व क्या रहता है? अकाउंटिंग, राइट. सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग एंड आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग. दो thorough and sound knowledge of generally accepted principle accounting standards, जिसको हम बोलते हैं principles of accounting, before he can review the financial statement. So that's why we should have a knowledge of accounting, then only we can do audit in a best manner. Accounting ही नहीं आएगा तो audit करना मुश्किल है, right? So that is what relation. So you should be aware of accounting because you are auditing financial statement, and which is a byproduct or accounting के बाद you are doing TB sub GL. That's why auditing, accounting you should know. Law, yes, very close relations. As an auditor should have a good knowledge of business laws affecting the entity. So which laws we are saying? Business, example contract law, negotiable instrument, taxation laws. So ये आपने अभी आपके लॉ में सीखा हुआ है, फाउंडेशन में है, प्लस अभी फाइनल में है. कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कंपनीज एक्ट है, टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, पीए प्रोविडेंट फंड एक्ट, ईएसआईसी एक्ट, बोनस एक्ट. These are all what business laws है ना, that you should be aware. Why? Because you are auditing, and you are auditing तो आप क्या बोल रहे हो कि laws regulation से compliance भी कंपनी ने किया है या नहीं किया है, तो you have to report, right? इस पे एक ऐसे भी है which will see. ठीक है. So that's why there is a very close relationship of accounting and law with auditing. Economics, yes, auditor is expected to be familiar with the overall economic environment of the client. Example, electrical vehicles regulations by the government impacting car manufacturing. Macroeconomics factor affecting the industry and businesses. So economic का क्या है? जो economic factor है, जो governments पॉलिसीज, प्रोसीजर्स है, या कंज्यूमर्स की चॉइस है, या कंज्यूमर्स के पैटर्न चेंज हो रहा है. सो हाउ देयर बिजनेस विल इंपैक्ट, दैट यू कैन ओनली एनालाइज और कंक्लूड. सो जैसे आप ऑडिट के लिए गए, क्लाइंट ने बोला यार रेवेन्यू कम हो गया, तो आपने बोला चलो 1 साल का कम हुआ बिकॉज ऑफ कोविड. नो, रेवेन्यू कम हो गया एंड परमानेंटली बिकॉज यू वेर डूइंग ऑडिट transaction with China, and there is a that effect also. So there is a going concern pay issue. So that's why you should be familiar with the overall economic environment which will affect your client. That's why you should have a knowledge of economics also, and that's relevant while auditing. Okay, and auditors should be aware of that. Behavioral science कैसे क्या important है? See here, nutshell, आप audit के लिए जाते हो, behavioral science, आप किसका audit कर रहे हो? एंटिटी का कर रहे हो, ठीक है. एंटिटी में लोग कौन है? दे आर ह्यूमंस. यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी. सपोज इफ यू आर आस्किंग, जैसे हम बोल रहे हैं प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, है ना, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्यों आ रहा है? क्योंकि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से, और वेदर दे आर लाइंग और दे आर नॉट. So rather than lying, they are not giving you full information. This is all how you will understand. If you can understand their psychology, behavior, a lot of time this is very important. If you force client, if you
ask them in a different way, you get an answer. So knowledge of human behavior is essential for an auditor to effectively discharge. So it is important to effectively discharge his duties, है ना. This sentence you should keep in mind. जब आंसर इसका आ रहा है तो आपको लिखना है कि if he want to effectively discharge his duty, he should be have knowledge about the human behavior. Needs to interact with a lot of people in the organization. Process owners of internal controls are human. So process owners क्या है, हमने internal control देखा है ना, जब हम more audit पे जाएंगे ना, audit procedures पे. So one of the audit procedure is क्या, understanding of process. Process बोले तो जब मैंने internal control हमने देखना कंपनी का, है ना. So internal control का अपने को क्या करना है, understanding करना है, right. Internal control का क्या करना है, understanding करना है. तो उसमें कौन प्रोसेस करता है, एनी प्रोसेस हु डज, सो दैट इज आइदर ऑटोमेटेड और ह्यूमन मैनुअल जिसको हम बोलेंगे. सो ह्यूमन इज आल्सो इन्वॉल्व्ड. दैट्स व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई you are interacting with lot of human there, and that's why you should understand. हाँ, आपको क्या एक्सपर्ट्स होना है, नहीं, but is it relevant? Yes. Okay, so behavioral science to the extent you are effectively discharged, इट इज कंपल्सरी. आपको एकदम बेस्ट बिहेवियरल, सो आपको सपोज इकोनॉमिक्स नहीं आए, आपको लॉ नहीं पता है, अकाउंटिंग नहीं पता है, तो कैन यू ऑडिट? नो, यू कैन नॉट ऑडिट, राइट. बट आपको बिहेवियरल साइंस का थोड़ा चीज है कि यू कैन अंडरस्टैंड, जज पीपल, सो भी चलता है. इट्स नॉट कि यहाँ पे आपको एक्सपर्टीज ही चाहिए, बट द बेटर दिस इज, यू कैन डू, यू इफेक्टिवली डिस्चार्ज योर ड्यूटीज. ठीक है. सो ये नहीं रहा, इफ यू कैनॉट डू, यू डोंट हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट रीडिंग पीपल, देन इट्स नॉट कि आप ऑडिट नहीं कर सकते हो. ठीक है. बट इट्स गुड एंड दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन. सो नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स. इसका है क्या रिलेशंस? यस, बिकॉज हम ऑडिट सैम्पलिंग जब कर रहे हैं ना, दैट टाइम वी लॉट ऑफ टाइम वी आर यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड कि भाई you know populations में से हम क्या लेते हैं, सैंपल्स लेते हैं. सो हाउ शुड सिलेक्ट द सैंपल्स कि हर एक का चांस इक्वल हो, राइट. सिलेक्शन का रैंडम सैम्पलिंग भी करना है तो कैसे करना है, फिर अलग अलग सैम्पलिंग की मेथड्स, हाउ दोज ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स मोर, है ना. एंड मैथमेटिक्स तो है ही अपना, क्योंकि आप टोटलिंग करते हो, वेरिफिकेशन, सम, मल्टीप्लिकेशंस, वो सब चीजें तो अपने को इन्वॉल्व है ही अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में. ठीक है ना. सो ऑडिटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग फॉर मीनिंगफुल कंक्लूजन and mathematics for verification of inventories. Example, audit sampling method. So statistics and mathematics is required. Verification of inventories, so a lot of time यहाँ पे verification of inventories क्यों specifically बोला है. So if you go supposedly, let's take an example. हाँ, मैंने एक audit किया था. आप you know this gas distributions companies, है ना. So gas distribution companies का inventory किधर रहता है? They are distributing gas, that is in pipes, right. So they are lied pipes. MNGL आपने देखा होगा, महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड. So उसका गैस जो है वो पाइप में है काफी, है ना. So that is stored in pipe. Now if you want to verify that inventory, how you will verify? You have to first कि भाई वो पाइप का लेंथ कितना है, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन बेसिस वॉल्यूम यू कैन से कि ये वॉल्यूम में आप इन्वेंट्री कितना स्टोर हो सकता है, राइट. सो लॉट ऑफ टाइम दैट वे मैथमेटिक्स. सिंपल एग्जांपल, वन मोर इज लाइक योर स्टील का क्या होता है, स्टील के रोल्स मिलते हैं. जब इफ यू गो टू एनी फैक्ट्री यू विल अंडरस्टैंड, स्टील काफी बड़े बड़े रोल्स रहते हैं या शीट्स रहती है काफी कट हुई, है ना. और वो छोटी छोटी रहती है, लाइक बिकॉज थिकनेस कम रहता है काफी जगह, है ना. स्टील का हर जगह जाड़ा बनाएंगे ऐसा नहीं, थिकनेस कम रहता है ना. सो थिकनेस कम होने की वजह से इफ यू वांट टू काउंट, हाउ यू विल डू? इट्स नॉट पॉसिबल. तो जनरली इट इज वेट करते हैं, उसका लेंथ कितना है, उसका हाइट कितना है, उस हिसाब से वो कितनी शीट्स बन सकती है, एंड दैट वे दे कैन काउंट. सो दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, लॉट ऑफ सो स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग इन ऑल मेथड्स यू यूज, and mathematics for verification of inventories or certain places. Simple sum is also part of mathematics, है ना. So इसलिए statistics and mathematics is useful, and stock taking is really interesting. So it is a time consuming, it is sometimes boring, but काफी time it is interesting work also, because stock verify करना हर industry का is very different ball game, है ना. आप suppose इसमें जा रहे हो, जिससे सब्जेक्ट निकला है, सो इफ यू आर गोइंग टू अ फार्मास्यूटिकल कंपनी,
इफ यू सी दवाई देखते हो आप, तो आप फर्क कर पाते हो क्या? सेम कलर की, लॉट ऑफ व्हाइट कलर आपको दिखेंगे दवाई का, है ना? सो कैन यू जज दैट कि ये कौन सा दवाई का पाउडर है या मटेरियल है? और वो सब जब जाते हैं ना, सब व्हाइट ही दिखता है. सो दैट इज वन. सेकेंड, लाइव स्टॉक चिकन्स. सो इफ यू नो वेंकीज, उसमें क्या लाइव स्टॉक है, चिकन्स है. सो वहां पे जाके यू हैव टू हैव अ बाथ while taking a stock count of Venky's, है ना? So that's coal mine. कोल माइन का आप स्टॉक कर रहे हो, कितना बड़ा कोल माइन रहता है, रिस्क भी रहता है, प्लेसेस आर वेरी एट अ रिमोट लोकेशंस. So right now drones are used to stock. So recent automation में they are done. Drones are used to see कि को कितना वॉल्यूम है, कितनी जगह है, क्या है, एंड उस हिसाब से they are counting coal also, और coal mines में कितना coal है, stock कितना है, that through the drones rather than physical visit, because इतना बड़ा premises it's very difficult. So there are automations are used now, started more in the auditing process also. So this is what statistics and mathematics are used. Next is data processing. So EDP auditing in itself is developing as a discipline itself. So जैसे हम बोल रहे हैं टैली आपने सुना होगा, SAP you might have heard. SAP is a software where you do a accounting, और आपका जो भी फाइनेंस फंक्शन है. अभी SAP में there are different modules. So SAP generally SAP की जब बात आती है तब अलग अलग मॉड्यूल्स रहते हैं SAP में. मॉड्यूल्स बोले तो क्या कि उसका अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से उन्होंने बाइफरकेट किया है. तो देयर इज अ FI मॉड्यूल, जनरली फाइनेंस मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, है ना, FI मॉड्यूल. फिर कॉस्टिंग मॉड्यूल, CO मॉड्यूल बोलते हैं. MM मॉड्यूल बोले तो मटेरियल मॉड्यूल, है ना. सो जो स्टॉक का मूवमेंट रहता है वो मटेरियल रहता है. कॉस्टिंग का पूरा कॉस्टिंग मॉड्यूल में रहता है. तो आप सिर्फ फाइनेंस मॉड्यूल भी ले सकते हो, फाइनेंस प्लस कॉस्टिंग ले सकते हो, फाइनेंस प्लस कॉस्टिंग प्लस मटेरियल ले सकते हो, है ना. फिर आप HR का अलग ले सकते हो, HR मॉड्यूल अलग रहता है. सो दे हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स फॉर अ डिफरेंट फंक्शंस, बिकॉज how much is a big company, how sophisticatedly you want to manage, you can decide. So there is a flexibility. Even Oracle has that. Oracle जो है उसका सॉफ्टवेयर है, क्विक बुक्स करके एक है रिसेंटली, है ना. लॉट ऑफ देयर आर जो बुक्स है. So these are all what ERPs, है ना. So some are more sophisticated, some are customized, है ना. So इसका यूज हो रहा है. दैट्स व्हाई डेटा इज प्रोसेस्ड इन सम सिस्टम. एक्सेल इज आल्सो वन ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग, है ना. सो आपको MS Excel आना चाहिए. सो दोज आर वेरी क्लोजली. इफ यू डोंट हैव एक्सेल, इट्स रियली डिफिकल्ट टू ऑडिट, है ना, क्योंकि आपको क्रॉस चेकिंग करना है, टोटलिंग करना है, लॉट ऑफ थिंग्स. सो एक्सेल इज अ बैकबोन फॉर एनीथिंग. So this is also a close relationship. You should be aware. Financial management. The auditor is expected to have knowledge about various financial techniques such as working capital management, fund flow, ratio analysis, capital budgeting. So आप subjects सोचोगे ना आपके, if you see subjects of your foundations, your intermediate and final, है ना, तो ये सब आपको समझ में आएगा. Except behavioral science, I don't think there is a anywhere it is covered. Behavioral science specifically कहीं cover किया है ऐसे मुझे कहीं लगता नहीं है ना. लास्ट वाला भी नहीं है. हाँ, प्रोडक्शन कॉस्टिंग में कवर होता है आपका थोड़ा बहुत, है ना. सो विल सी. जैसे आपको वेरिएबल कॉस्ट, डेटा प्रोसेसिंग में, डेटा प्रोसेसिंग EISM में है आपका. फिर आगे जाके फाइनल में भी आपको डेटा प्रोसेसिंग के लिए, SFM. हाँ, राइट. फिर फिनेंशियल मैनेजमेंट तो आपका FM हो गया. सो ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड, ये नॉलेज भी होना जरूरी है क्योंकि आपको रेशियोज देखने कंपनी के, आपको कैपिटल बजटिंग देखनी है, आपको वर्किंग कैपिटल का नॉलेज समझना है कि कंपनी वेस्ट कर रहा है, वहां पे आपको लीकेजेस एंड वेस्टेजेस एंड यूज ऑफ कैपिटल सही है या नहीं है, या डेट वर्सेस कैपिटल कितना है, वेदर इट इज प्रॉपर, और कंपनी इज टेकिंग रिस्क, गोइंग कंसर्न के लिए काम में आता है, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स के लिए काम में आता है आपको, है ना, कैपिटल बजटिंग एंड ऑल. So this is also relevant. And last one is production. Good auditor is one who understand. So आप देखोगे तो audit, production and behavioral science is not that compulsory, है ना, पर production का भी knowledge होगा. जैसे आप generally, this is more from a practice point of view we are talking. So good auditor is one who understand client and his business function such as production, cost, system, marketing. So cost system आपको costing में थोड़ा बहुत covered है, variable cost, fixed cost, है ना, आगे भी है final में.
तो वो आपको बेसिक चीजें कवर्ड है। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन का प्रोसेस पता रहेगा तो आपको है ना गलती कहाँ हो रही है, लॉसेस क्यों हो रहा है, अदर चीजें काफी अच्छी तरह समझ में आती है। एंड दिस इज प्रोडक्शन बिहेवियरल साइंस इज मोर बाय प्रैक्टिस, यू कैन नॉट टीच देम। एंड फॉर ऑडिटर इट इज लाइक सबसे इंपॉर्टेंट बाद में यही काम हो जाता है कि आपको बिजनेस कैसे अंडरस्टैंड हो रहा है क्लाइंट का, और आप कितना बिहेवियरल, बिकॉज इसमें तो आप एक्सपर्ट हो जाते हो, आप सीए बन जाते हो आप ओवर द पीरियड, और फिर प्रैक्टिस भी कर लेते हो, जल्दी जल्दी आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। बट दीज आर द ओवर द पीरियड यू लर्न, है ना। सो दिस इज व्हाट रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या है, जो हमने देखा एसएस है ना, स्टैंडर्ड एसक्यूसी। ओके, सो इसका सेटिंग प्रोसेस क्या है। सो इंडिया, सो इंटरनेशनली एसएस को क्या बोलते हैं, आईएसए, आइसा जिसको हम बोलते हैं, जनरली आइसा बोलते हैं, और इसको एसएस बोलते हैं हम, है ना। आइसा बोले तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। इनके नंबर और इसके नंबर सेम है क्या, यस, लाइक आईएफआरएस और इंडेस अपन ने सुना होगा, इंडेस आपने सुना है अभी, कंसेप्ट इंडेस का जो आपको फाइनल में बहुत डिटेल में है। सो इंडेस एंड आईएफआरएस, इंडिया व्हाट इंडिया हैड डन, इंडिया हैज नॉट अडॉप्टेड आईएफआरएस, इंडिया हैज कन्वर्ज्ड आईएफआरएस। कन्वर्ज बोले तो इसको क्या किया, इसको 90-95% हमने यूज किया है। हमने क्या किया, थोड़ा सा ट्विक किया इंडियन सिनेरियो के हिसाब से, बाकी हमने आईएफआरएस फॉलो किया है। नाउ लॉट ऑफ कंट्रीज, सो इफ यू सी ग्लोबली आईएफआरएस एंड यूएस गैप, these are the two generally accepted accounting principles रह गए। यूएस गैप थोड़ा अलग रहता है आईएफआरएस से, there are more stringent rules and guidance under US GAAP rather than IFRS. So lot of, I think if I remember correct, 150 plus countries are using IFRS now, okay, and US GAAP, है ना। So जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अभी इंडिया से, थोड़ा उनका लोकल गैप भी है, बट मैक्सिमम ऑल कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज जो फाइनेंशियल्स में है वो आईएफआरएस यूज करता है रिस्पेक्टिव कंट्री का, एंड यूएस गैप अभी सेकंड बड़ा जो रहा है। दिस इज फॉर माय अकाउंटिंग पॉइंट। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट जनरली ऑडिटिंग प्रिंसिपल जो है ना, एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल जो है उसके बारे में, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हम जिसको बोलते हैं, गैस जिसको बोलते हैं हम, है ना। सो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये कौन सेटिंग प्रोसेस है, कैसे होता है। सो इंटरनेशनली इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, इंडिया में हम स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बोलते हैं। हाउ इट इज स्टार्टेड, सो इफ्का करके था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स, जो 1977 में फॉर्म हुआ with a view to bringing harmony in the profession of accountants on an international scale. So आपने lot of time you have heard that why it is that harmony is needed, because now we are doing business globally, है ना, we are investors from the globe, है ना। So जिसको सब लैंग्वेज समझे, जैसे अभी अपन ने बोला है कि lot of time we use English, Germany, right? So जर्मन लैंग्वेज, राइट। सो दीज आर द कॉमनली स्पीकिंग, तो अभी इंग्लिश कॉमनली स्पीकिंग है, इसलिए इंडिया हैज अडॉप्टेड इंग्लिश, राइट, लॉट ऑफ टाइम। सो उस तरह जब स्टैंडर्ड सेटिंग की बात आती है, जब ऑडिट की बात आती है, जब अकाउंट्स की बात आ रही है, तब भी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई इफ्का, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, वाज सेट अप, हु their effort was to bring harmony in the अकाउंटेंसी प्रोफेशन। सो भाई मैं ऑडिट जो बोल रहा हूं, मैं जैसे ऑडिट कर रहा हूं इंटरनेशनली, दैट शुड बी एक्सेप्टेड। दैट्स व्हाई इंडिया हैज आल्सो अडॉप्टेड एसएस। नाउ आप जाते हो बाहर एंड यू वांट टू ऑडिट, सपोज यू वांट टू गो यूके, यू वांट टू गो यूएस, कनाडा, एनीवेयर, एंड दैट्स व्हाई इंडिया, ये सब होने के बाद क्या हो रहा है, यू हैव यू हर्ड विद एमआरए, एमआरए करके एक है, एमआरए इज म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स, है ना। ये क्या रहता है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। ICAI has signed with many institutes outside India the mutual recognition agreement। बोले तो अपना सीए को वो रिकॉग्नाइज करते हैं एज देयर सीपीए। ओके, सो जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, इंडिया ने कनाडा के साथ साइन किया है, ओके, कनाडा के भी साथ साइन, रशिया के साथ, रसिया है, फिर अभी रिसेंटली आई थिंक ये ICAW है ना, इंग्लैंड एंड वेल्स का जो है, नीदरलैंड, राइट। सो यहाँ पे इंग्लैंड एंड वेल्स में तो एक भी एग्जाम नहीं देना है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेपर देना है, यूएस के साथ नहीं है अभी अपना, मेजर कंट्रीज में आप देखोगे तो, बट बाकी काफी जगह जैसे यूके, इंग्लैंड एंड वेल्स हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, मेनी मेनी अदर कंट्रीज वी आर कवर्ड, नाउ दे आर गोइंग ऑन। ये क्यों पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज दिस हार्मोनाइजेशन, इंडिया had adopted Ind AS,
which is equivalent to IFRS. So you can work on IFRS financials. You can work on an international standard of auditing, क्योंकि standard of auditing और international सब same है ना? So that's why we could do this MRA. तो ये जो harmonization है, that is possible only because of this harmonization. That's why always अपन जब भी देखते हैं what everybody does, one does that and everybody follows. Lot of time and 90% has to be followed. And ये सब के लिए India ICI is also representative in IFCA, right? फिर एशिया के लिए भी एक बॉडी है जो रिप्रेजेंटेटिव रहती है ना? So those are culminated and finally it is discussed, agreed and then flow. And we just we have to adopt. Everybody has to adopt, है ना? So that is generally a practice. So this is the main body who helps कि फिर आप harmonization कैसे कर सकते हो. ठीक है, ये 1970 में इफ्का इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स सेटअप हुई थी. इसके बाद क्या सेटअप हुआ? IASB, बोले तो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस. सो हर एक फंक्शंस के लिए एक होना चाहिए. सो इफ्का तो जनरल अकाउंटेंट्स के लिए, वो उनका काम है कि ऑडिटिंग भी देखना, अकाउंटिंग भी देखना, बाकी सब भी. IASB सेट हुआ मोस्टली फॉर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. सो जिसका काम था ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पे काम करना. सो इफ्का ने IASB को स्टैब्लिश किया टू फोकस ऑन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का काम, कि भी आप ऐसा करो और जो बाकी है उस हिसाब से यू कैन सेट अप. सो IASB का फंक्शन क्या था? इट फंक्शंस एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ इफ्का. सो इफ्का के अंडर, इफ्का के अम्ब्रेला के अंडर IASB has been formed as an independent body for setting standards. Which standards? For auditing and assurance. Serve the public interest by setting high quality auditing standard and by facilitating the convergence of international and national standards. इनका काम क्या है? सेट करना, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करना, प्लस फैसिलिटेट करना कि भी बाकी कंट्रीज इंटरनेशनली और नेशनल स्टैंडर्ड्स आर कन्वर्टेड और इज अडॉप्टिंग. सो दैट हेल्पिंग हैंड कि उनको नॉलेज पास करना है, उनको डिटेलिंग देना है, जो भी करना है, दैट इज देयर वर्क. Enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening the public confidence in the global auditing and assurance profession. So इनका काम क्या है? They are looking at a global accounting auditing profession कि भी जो confidence है, see audit is all about confidence. आप किसका financial देखते हो और आपको लगता है ये auditor अच्छा है, तो आपको वो financials पे क्या आता है? More comfort आता है you से, अरे ये financial इसने sign किया है ना, financials में गलती कम होंगी. That is what confidence build, है ना? आप काफी बार देखते हो कुछ फिनेंशियल देख के, या आपको सपोज सब जगह है ना ऐसे आधा अधूरा डिस्क्लोजर दिखा या पूरा लैंग्वेज नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ गलती निकली, कैन यू गेट अ कॉन्फिडेंस? नो, है ना? सो दैट सिमिलर वे क्वालिटी यूनिफॉर्मिटी आती है, तो दैट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. दिस इज द फंक्शन ऑफ IASB. तो तीन फंक्शन है, एक तो इंडिपेंडेंट बॉडी है अंडर इफ्का, सेकेंड इंटरेस्ट बाय सेटिंग ऑफ हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स उनका काम है, एंड वो लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे उसको कैसे फैसिलिटेट करना टू कन्वर्ट अदर पीपल, एंड क्वालिटी यूनिफॉर्मिटी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक. ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएगा, चांसेस लेस. जस्ट टू रिमाइंड यू, इफ आई एम नॉट करेक्ट, मेरे फाइनल अटेम्प्ट में, ओके, फाइनल के अटेम्प्ट में we got such questions, और वो भी शॉर्ट फॉर्म आया था. If you want to see, November 2008 was my final attempt, and अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में आया था, आई थिंक भी ASB के बारे में आया था, एंड आई वाज अवेयर ओनली 1 or 2 लाइंस अबाउट दैट, नॉट द फंक्शंस या डिटेल में तब उतना पता नहीं था, या वी आर नॉट रेड, वी थॉट कि इस पे क्वेश्चंस नहीं आएगा, बट दे जस्ट आस्क ASB एक्सप्लेन, है ना? तब तो पैटर्न्स अलग थे, अब तो काफी ये है, but you can get indirect questions, so you should know what is the function also. जो ये 3 लाइन, ये 4 लाइन आपको आ गया तो 3 से 4 मार्क का आपका क्वेश्चन का काम हो जाएगा. ठीक है ना? अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या अचीव करना है? एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस, दैट इज ट्रू. सो ब्रेकअप करते हैं. फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स दैट आर जनरली एक्सेप्टेड and recognized by investors, auditors, governments, banking regulators, securities regulator, other key stakeholders across the world. So भी इनका काम क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस करने हैं, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सेप्टेंस बढ़े और सब रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर्स हो, सेबी हो, PCOB, सेबी जैसे अपने यहाँ है जो लिस्टेड कंपनी के लिए, जैसे यूएस में PCAOB है ना, SEC है, SEC सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल, है ना, और PCOB इज बोर्ड हु गवर्न्स दैट,
है ना। सो ये सब जो है उनको भी एक्सेप्टेड होना चाहिए, ऐसा गाइडेंस और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हाई क्वालिटी सेटअप करने, हु कैन एक्सेप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव। फॉर अदर टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज ऑन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैटर्स, सो इनको क्या करना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस तो करना है। किस किस के लिए, एक तो फाइनेंशियल ऑडिट के लिए जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं एसएस। फिर आपको क्या करना है, एससीईज बोले तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैटर के लिए आपको एश्योरेंस देना है। तो फिर अदर रिलेटेड सर्विस, हम ये नीचे डिटेल में पढ़ेंगे एसआरएस क्या होता है, अदर रिलेटेड सर्विस के लिए। फॉर क्वालिटी कंट्रोल कवरिंग द स्कोप ऑफ सर्विसेज एड्रेस बाय आईएसबी, बोले तो एसक्यूसी हमने जो देखा, एंड पब्लिशिंग अदर प्रोनाउंसेड फॉर पब्लिक एट अ लार्ज एंड प्रोफेशन। सो एसएस, एससीईज, एसक्यूसीज, एसआरईज, है ना, और अदर गाइडेंस, ये सब ऑब्जेक्टिव है। ये सबका और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस सेट करने का काम ऑब्जेक्टिव किसका है, आईएसबी का है। ठीक है, ये हो गया आपका आईएसबी इफ का। ठीक है, अब इंडिया का देखते हैं, कौन है इंडिया का, एएसबी, ये गलत हो गया, एएसबी, सो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। सो आईसीएआई कॉन्स्टिट्यूट द एएसबी। आईसीएआई क्यों किया, क्योंकि सीए या ऑडिटर पे किसका कंट्रोल है, आईसीएआई का है। सो आईसीएआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया एएसबी, अर्सवाइल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी, पहले उसको एपीसी बोलते थे, है ना, to review the existing auditing practices in India and to develop engagement and quality control standards, also one standard of statements on standard auditing practices, so that these may be issued by Council of Institute. Finally, कौन इशू करता है, काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट करता है, एएसबी नहीं करता है। फाइनली दिस इज इशूड बाय, सो एएसबी फैसिलिटेट्स, लेना है भी इसका क्या कर रहा है, एएसबी इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आईएसबी का मेंबर है, उससे सब लेके वो फैसिलिटेट करके उसको डेवलप करके इंडियन के हिसाब से एडिट करके वो काउंसिल को रिकमेंड करते हैं, काउंसिल उसको बोलता है कि ये फॉलो करना है। ICAI is a member of IFCA and is committed to work towards implementation of guidelines issued by IFCA. So ICAI is a member of International Federation of Accountant, उसका मेंबर है और उसका सब गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करने का काम ICAI का है, that they do through ASB. In July 2002, erstwhile APC converted it to ASB to be in line with the international trend, introduced desired transparency in the working, included participation of representatives of various segments of the society and interest groups. In the year 2007, the board issued several revised and new standards pursuant to IASB Clarity Project. While the issuing auditing standard and practices, ASB takes consideration to the applicable laws, custom uses and business environment in India. So उन्होंने क्या किया, ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इशू किया, क्या करके इंडिया के कंसिडरेशन जो है, लॉ है, कस्टम्स है, यूजेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको लेके थोड़ा ट्विक किया। और 2007 में फाइनली आईएसबी के क्लैरिटी प्रोजेक्ट बोले तो सबने जो अडॉप्ट करना है, कन्वर्ट करना है, बेसिस उन्होंने जो आईसास डेवलप किए थे उस हिसाब से इंडिया ने ऐसे इशू करना चालू किया विद सम एडिट्स एज रिक्वायर्ड। सो ये हो गया आपका मैक्सिमम दे हैव अडॉप्टेड 90-95%, है ना, थोड़ा सा ट्विक एंड टेस्ट। सो ये हो गया आपका इफका, एएसबी एंड आईएसबी। अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ओवरव्यू जो होता है, सो हमने देखा कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड एएसबी, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे, स्ट्रक्चर प्रोनाउंस इशूड बाय एएसबी, फिर फ्रेमवर्क फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड अदर सर्विसेज एंगेजमेंट। तो अभी इसमें हमने देखा फर्स्ट क्या आता है आपका एसेज, जो हमको आपको इंटरमीडिएट के सिलेबस में सिर्फ एसेज है, आपको एसआरईज नहीं है, एसएईज नहीं है, एसआरएस नहीं है, एंड एसक्यूसी है। सो 1 and 5th आपको सिलेबस में है। ठीक है, अब ये सब क्या रहते हैं, तो ये एसबी इशू करता है, काउंसिल फाइनली उसको इशू करता है। सो एसएएस क्या रहता है, एसएएस बोले तो फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। सो apply in the audit of historical financial information, statutory audit as per Companies Act, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, स्टैट्यूटरी ऑडिट जब रहते हैं तब आप क्या यूज करते हो, एसेज यूज करते हो, बोले तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग यूज करते हो। सो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या वर्ड रखना है, कभी क्वेश्चन आता है, एंड दिस विल बी वेरी गुड एंड इजी क्वेश्चन एंड बट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो एसेस कब यूज करना है आपको, जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑडिट कर रहे हो तब। आप ये नहीं बोलते आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप एलएलपी को ऑडिट कर रहे हो तो
आपको क्या वर्ड यूज करना है, हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का आप ऑडिट कर रहे हो तो आप क्या यूज करोगे, एसेज यूज करोगे। एसे की सीरीज क्या है, 100 से 999 तक जो सीरीज है वो एसेज रहती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, एसआरईज, ठीक है ना। एसआरईज क्या है, जो रिव्यू एंगेजमेंट है। क्वार्टरली रिपोर्ट देखिए आपने, लिस्टेड कंपनी को क्या करना रहता है, क्वार्टरली आपको रिपोर्ट इश्यू करनी रहती है, ठीक है ना। सो वो क्या रेफर करना है, तब एसआरई रेफर करना। एसआरई की नंबर सीरीज क्या है, एसआरई बोले तो क्या, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, है ना। सो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। हम जब सिर्फ यहाँ पे हम ऑडिट कर रहे हैं हिस्टोरिकल फिनेंशियल का, हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, दैट्स ओनली डिफरेंस बिटवीन एसएज एंड एसआरईज। बट प्रोसीजर में बहुत डिफरेंस है। हम यहाँ पे क्या ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देते। हम जब रिव्यू करते हैं हम क्या बोलते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं, हम लिमिटेड एश्योरेंस। हमने सिर्फ रिव्यू किया है और हमने वो रिव्यू के बेसिस पे बोला है, हमने डिटेल प्रोसीजर्स की नहीं है ना। तब आप लिस्टेड कंपनी का कभी क्वार्टरली ऑडिट रिपोर्ट देखोगे तो तब वहां पे एसआरईज का रेफरेंस देते हैं, वो ऐसे का नहीं। जब ऑडिट रिपोर्ट आप देखते हो और ये ऑडिटर को मेंशन भी करना पड़ता है, ओके। सो लेट्स क्विकली, इफ यू वांट, विल जस्ट सी हाउ योर ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट है आपका, ठीक है। सो अपन जुबिलियंट फूड का ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे। चैटिंग, थैंक यू हर्षल। ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो इसी ऑडिटर रिपोर्ट, इसमें आप देखोगे तो ऑडिटर को मेंशन करना पड़ता है कि आपने कैसे ऑडिट किया है। तो आपको बोलना पड़ता है कि भाई कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैंने ऑडिट किया है, राइट। एंड in our opinion, information of purchase standalone financial information required in the manner so required give true and fair view conform with the Indian accounting standard under section 13 and Ind AS and accounting principles accepted in India. उसके बाद वो क्या बोलता है, बेसिस ऑफ माय ओपिनियन। बेसिस ऑफ ओपिनियन कैसे दिया मैंने, कि मैंने कंडक्ट किया ऑडिट, आर ऑडिट स्टैंडर्ड ऑफ फिनेंशियल इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, एसेज। जो एसेज है ना, और वो कंपनीज एक्ट में भी अंडर सेक्शन 143 में बोला है कि आपको एसेज फॉलो करना कंपलसरी है। एंड देन कोड ऑफ एथिक्स एंड ऑल विच वी विल सी नीचे, उसके हिसाब से भी आपको आपने रेफर किया है कि इंडिपेंडेंस हो, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, जो बाकी सब चीजें हैं वो भी आपने कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करके ऑडिट किया है। बट यहाँ पे आपने क्या लिखा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। वही आप सपोज इफ यू सी एनी लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, है ना। सो आप लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट देखते हो कोई, जिसको हम लिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो सी लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट में क्या लिखते हैं अपन, वी हैव रिव्यूड दिस कंपनी, और यहाँ पे हम बोलते हैं ये वी कंडक्टेड आर रिव्यू। सो यहाँ पे ऑडिट नहीं वर्ड यूज किया है, कीप इन माइंड, है ना। वी कंडक्टेड आर रिव्यू ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम नहीं कर रहे। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वी कंडक्टेड ऑडिट ऑफ स्टैंडअलोन फाइनेंशियल, क्योंकि यहाँ पे हम किसका ऑडिट कर रहे हैं, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। यहाँ पे हम सिर्फ स्टेटमेंट का कर रहे हैं, विच इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीट सेट, जिसमें अकाउंट डिस्क्लोजर्स और बाकी सब चीजें नहीं है। इन अकॉर्डेंस विथ किसके हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट बोला तो क्या, SRE हमने जो देखा है ना। सो SRE 2410 जो एप्लीकेबल है वो है रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी इशूड बाय ICAI। सो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ आप बोलते हो वी हैव जस्ट डन रिव्यू, एंड आपको जैसे मैंने बोला बेस्ड ऑन आवर रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that statement has not been prepared in all material respects, है ना। और यहाँ पे हम और एक बोलते हैं कि we have not given, हाँ, we don't accordingly, है ना। so यहाँ पे if you see a review is substantially less in scope than audit conducted in accordance with the standard on auditing
consequently does not enable us to obtain assurance. हमको एश्योरेंस लेने की जगह ही नहीं है, हम सिर्फ लिमिटेड काम करके बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? become aware of all significant matters and might be identified in audit. Accordingly, we don't express an audit opinion. So हम क्या नहीं कर रहे हैं? हम ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ वहां पे हम क्या बोलते हैं? वी, इफ यू सी अ फुल स्टेटमेंट, यहाँ पे हम बोलते हैं कि वी हैव एक्सप्रेस्ड आवर ऑडिट ओपिनियन। यहाँ पे बेसिस फॉर आवर ओपिनियन है ना? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं। और हम यहाँ पे बोलते भी है कि वी ऑडिटेड एंड हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं इन आवर ओपिनियन एंड बेस्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है? और वी से कि इट इज अ ट्रू एंड फेयर। यहाँ पे इफ यू से वी आर सेइंग इट इज अ ट्रू एंड फेयर। यहाँ पे हम ऐसा कुछ ट्रू फेयर वगैरह नहीं बोल रहे हैं, हम ओपिनियन ही एश्योरेंस ही नहीं दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव डन वेरी लिमिटेड वर्क, जस्ट रिव्यू किया, वो भी मोर ऑफ इंक्वायरी बेस्ड एंड एज पर द एसआरईज। एंड जहाँ पे वी आर नॉट गिविंग एश्योरेंस, वी आर नॉट गिविंग ओपिनियन, वी आर जस्ट सेइंग कि बेसिस आवर रिव्यू कंडक्टेड, nothing has come to our attention, nothing has come to our attention that ki it is not prepared in material respects. ठीक है? So this is the difference between SREs and SA. दोनों में हम किसका काम कर रहे हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ही काम कर रहे हैं, बट वन इज फॉर द रिव्यू, वन इज फॉर द ऑडिट। सो ये हो गया दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज द डिफरेंस। एंड इस पे क्वेश्चन आया तो वेरी इजी शुड बी फॉर यू कि भाई डिफरेंस क्या है एसआरईज एंड एसीईज में। ठीक है? नेक्स्ट क्या है आपको? अप्लाई इन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, एसएईज। एसएईज बोले तो क्या आ गया आपका? स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो ये भी एश्योरेंस, ये भी एश्योरेंस, सब एश्योरेंस के लिए ही है। ये जो भी काम है वो एश्योरेंस के लिए ही है, एश्योरेंस फंक्शन के लिए। बोले तो आश्वासन देने के लिए, बोले तो प्रॉमिस करने के लिए भी मैंने काम किया तो सब ठीक है या नहीं, आई गिव दैट कि भाई ये जो मैंने काम किया है उस पर सब ठीक है या नहीं, मैं उसका एश्योरेंस देता हूँ, है ना? तो अभी एसएईज में हम एश्योरेंस देते हैं, किस पे देते हैं? बट ये तो दोनों हिस्टोरिकल के लिए। यहाँ पे हम अप्लाई इन एश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल examination of prospective financial statement, control side service organizations, forecast, etc. So हम historical financial के नहीं, prospective financial information पे जब रिपोर्ट करते हैं, है ना, तब हम क्या यूज करेंगे? एसएईज करेंगे। जैसे हम लिस्टेड कंपनी का, सपोज एनीबडी हु इज गोइंग फॉर अ लिस्टिंग, उनको क्या करता है? प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन लगती है, उसका ऑडिटेड फिगर लगता है। कंट्रोल साइड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देखोगे इसका मीनिंग क्या है? कंट्रोल्स, ये आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड भी कवर्ड नहीं है आपके सिलेबस में, बट बेसिक कंट्रोल दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोले तो क्या? सपोज आपका पेरोल फंक्शन है, जनरली यू इफ यू विल सी पेरोल फंक्शन, इट इज आउटसोर्स टू अ थर्ड पार्टी। सो कंपनी खुद पेरोल प्रोसेस नहीं करता है, दूसरा करता है, उसके कंट्रोल्स मुझे चेक करने को बोलती है कंपनी। तो मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ऑडिट कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंस, मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ उनके कंट्रोल जा रहा हूँ, उसके कंट्रोल बोल रहा हूँ कि भाई जो पेरोल आपका प्रोसेस कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आउटसोर्स करती है, बट उनको वो है कि उनके हाथ सही कंट्रोल्स है या नहीं, ये देखना जरूरी है। तब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है। ऑडिटर बोले तो इट इज ओनली फॉर अ लिमिटेड पर्पस ऑफ कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, है ना? सो इसमें हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे नहीं कर रहे हैं। सो फर्स्ट टू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, वन ऑडिट, सेकंड रिव्यू, थर्ड इज एश्योरेंस एंगेजमेंट, बट अदर देन, सो हम एश्योरेंस दे रहे हैं, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि सब ठीक है, हम रिपोर्ट देते हैं, बट यहाँ पे अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल। अब एसआरईज क्या है? लास्ट एसआरईज क्या है? सो स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। भाई हमें ना ऑडिट नहीं कर रहे हैं, बट हम रिलेटेड सर्विसेज कर रहे हैं, बोले तो जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन कर दिया। सो अप्लाई टू द एंगेजमेंट्स इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स टू इंफॉर्मेशन एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। एंगेजमेंट्स सच एज कंपाइलेशन ऑफ एंगेजमेंट्स, audit of inventory, trade payables, है ना? So procedures as agreed between two parties, report provides factual findings and agreed upon position, no assurance is expressed. So हम यहाँ पे SRE में assurance नहीं देते, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन आया, डिफिकल्ट क्वेश्चन ना करना है तो they will talk about कि whether you provide assurance or not, है ना? So if they want to see, फर्क क्या रहता है डिफिकल्ट और if you see exam, वो मैन्यूट छोटी चीज पे क्वेश्चन पूछा तो आपको क्या लगता है डिफिकल्ट है, क्योंकि उस पे जनरली क्वेश्चंस पूछे नहीं गए। सो इफ यू सी एश्योरेंस किस पे दे रहे हैं हम? सो एश्योरेंस हम देते हैं एसएज में, राइट, और एसएई में, है ना? एश्योरेंस नहीं देते हम, नो एश्योरेंस, हम इतना ही बोलते हैं जो किया है उससे बराबर है, म्हणजे नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन। सो एसआरई रिव्यू एंगेजमेंट,
और SRS में हम क्या करते हैं, एश्योरेंस नहीं देते। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हमने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर बोले तो मेरे को क्या बोला कि तुम्हें ना एक्स लोकेशन है हमारा, उसका इन्वेंटरी वेरिफिकेशन करके दो। इन्वेंटरी वेरिफिकेशन किसका करके दो, सब परसेंट नहीं, 100% नहीं, आप ABC एनालिसिस करो और आप मुझे ना 60% ऑफ मेरी इन्वेंटरी कवर हो, ऐसे आपने क्या करके दो, मुझे इन्वेंटरी वेरिफिकेशन करके दो। सो दिस इज व्हाट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, कि दोनों के बीच में एग्री हुआ कि ये प्रोसीजर करना है, ये लोकेशन करना है, इतना परसेंटेज कवरेज करना है, एंड वी डिड दैट। एंड दिस इज नॉट historical, financial or prospective. We are not giving in on the financial information, we are giving only on the specific things, specific area, inventory, trade payable, fixed asset जो भी है ना। एंड उस पे हम एश्योरेंस रिपोर्ट नहीं दे रहे, हम बोल रहे हैं फैक्चुअल पॉइंटिंग कि भाई मेरे को इन्वेंट्री 10 रुपए की नहीं मिली है ना, सो या 10 रुपीज 10% से वेरिएशन है, बाकी सब मिल गया, वॉट एवर। सो वी आर गिविंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, या फिर नो एश्योरेंस। ये हो गया एसए स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। SRE स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट्स, SAEs बोले तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑन एश्योरेंस, एंड SRAs बोले तो स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ये सीरीजेस है, ये आपको कहीं भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको आएगा ये सब पे तो इतना ही आएगा, यही चैप्टर से आएगा, यही सेक्शन से आएगा, अदरवाइज आपको कोई क्वेश्चन ये सब पे नहीं आएगा। एसएस पे यस, SQC पे भी जो चैप्टर 1 में कवर्ड है। SQC क्या है, ये क्वालिटी ऑफ फॉर्म्स परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड अदर एश्योरेंस। SQC अभी तक एक ही इशू है, SQC 1, जिसमें फर्म की क्वालिटी के बारे में बोला है कि फर्म में ये क्वालिटी, हम डिटेल में अभी नीचे इमीडिएटली वो पढ़ने वाले हैं। सो ये सब हो गया। एनी कंफ्यूजन इन दिस? SAs, SREs, lot of time happens कि रिव्यू एंगेजमेंट्स, ऑडिट एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट, है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो लेट्स डिस्कस और वी विल गो आगे, ठीक है। सो आई होप सब ठीक है अभी तक। चलो फिर अभी अपन आगे जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। ये बहुत छोटा सा सेक्शन है कि भाई ऑडिटर्स की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। ऑडिटर हो आप तो मिनिमम क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले यू शुड बी ऑनेस्ट। सो एक लॉर्ड जस्टिस है, लॉर्ड जस्टिस लिंडेल, in the course of judgment in the famous London and General Bank case, had succinctly summed up the overall view of an auditor should be as regards to personal qualities। तो इन्होंने एक समअप किया है, एक समरी बनाई है कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उनके हिसाब से क्या था, जब उन्होंने जजमेंट पास किया इन लंदन एंड जनरल बैंक, तब उन्होंने बोला कि अरे यार ऑडिटर में ये क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। सो विच इज जनरली कैरिड आउट एंड विच इज ऑलरेडी फॉलोड। सो उसमें वो क्या बोले, ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, that is he must not certify what he does not believe to be true and must take reasonable care and skill before he believes that what he certifies is true। so दो चीजों उन्होंने बोला कि you should not certify unless you are sure, you are sure that it is true, and second, whenever you are saying true, apply your care and skill and then conclude that and then certify it is true। so आप नहीं सर्टिफाई करो जब आपको लग रहा है ट्रू नहीं है, एंड ट्रू है तो रिजनेबल केयर एंड स्किल लगाने के बाद आप सर्टिफाई करो कि इट इज ट्रू। सो दिस इज व्हाट दैट लॉर्ड जस्टिस लिंडेल हैज सम अप व्हाइल गिविंग अ वर्डिक्ट ऑफ द केस। जनरल अपने क्या क्या फॉलो करेंगे अपन, क्वालिटीज दैट गो टू मेक अ गुड businessman contribute to the making good auditors such as tact, caution, firmness, good temper, discretion, industry, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडनेस, रिलायबिलिटी। सो एक अच्छा बिजनेसमैन, बिकॉज ऑडिटर का भी काम बिजनेस का ही है ना, उसका भी प्रैक्टिस इज लाइक अ प्रोफेशनल वर्क। सो यू शुड हैव दैट गुड बिजनेसमैन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज, है ना। बीजे आप क्वेश्चंस होना चाहिए, फर्मनेस होना चाहिए, टैक्ट होना चाहिए, डिस्क्रिशन होना चाहिए, दिस ऑल सिंपल थिंग्स। और क्या होना चाहिए, integrity, objectivity, independence as one of the fundamental principle of professional ethics, so as to auditors should have highest degree of integrity backed by adequate independence। so integrity होनी चाहिए मेरे पे, है ना। and second क्या होना चाहिए, मेरा independence भी होना चाहिए, that is all। फिर knowledge of general principle of law, both practical training and theoretical, that's why अपना articleship है ना। so आपको दोनों knowledge होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी। काफी चीजें प्रैक्टिकली डिफरेंट वे से होती है, बट दोज आर नॉट इनकरेक्ट, है ना। sometimes those are correct but the way they follow is different। education, special features peculiar to a business, holds position of trust and should have basic human qualities, exhaustive knowledge of accounting in all its branches, sine qua non an essential condition, thing that is absolutely necessary।
सो यहाँ पे सिन को नॉन बोले तो एन इसेंशियल कंडीशन है, क्या अकाउंटिंग आना चाहिए ऑन ऑल इट्स ब्रांचेस, है ना। सो सब टाइप का आपको अकाउंटिंग का जो भी नॉलेज है वो सब आना चाहिए, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको सिखाए गए हैं, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको काफी प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, दैट इज सिन को नॉन, है ना। सो सिन को नॉन एन इसेंशियल कंडीशन उसका मीनिंग है ना। सो ये वर्ड पे क्वेश्चन आया तो आपको ध्यान में रखना है, सिन को नॉन दैट इज अ इसेंशियल कंडीशन, एंड इफ यू रीड कि अकाउंटिंग is a SINCO, exhaustive knowledge of accounting is necessary, that is SINCO non an essential condition. So इसमें basically if we want to sum up, एक अच्छे ऑडिटर का क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी, है ना, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, स्पेशल फीचर्स ऑफ पिक्यूलर टू अ बिजनेस, जो भी कोई बिजनेस रहता है ना उसमें पिक्यूलर बिजनेस रहता है वो, तो वो आना चाहिए। अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री का आप ऑडिट कर रहे हो, सपोज एयरटेल, आइडिया, है, रिलायंस का जियो, उसके ऑडिट करने जा रहे हो, तो यू शुड अंडरस्टैंड बिजनेस, देन ओनली दैट स्पेशल फीचर्स ऑफ दोस बिजनेस, देन ओनली यू कैन ऑडिट, है ना। दोज आर द क्वालिटी, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर अ स्पेसिफिक पिक्यूलर बिजनेस, you should get that knowledge, you should have that knowledge, है ना। these are a general qualities of an auditor, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया तो you can generally write कि भी ये नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेशल फीचर्स पता होने चाहिए, बेसिक का ट्रस्ट है इसलिए बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यह सब चीजें ऑडिटर में होनी चाहिए। सो ये हो गया आपका 9th सेक्शन। Today's last section, SQC1, which is also important. Lot of time questions have been asked. And essay 220 भी इसमें कवर होता है, जो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। सो फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्वालिटी कंट्रोल करना है वो उसके बारे में भी सिमिलर essay 220 में दिया हुआ है। essay 220 is a smaller than SQC1. SQC1 is more detail. essay 220 में भी वो बोलता है आपको क्या क्वालिटी कंट्रोल करना है एज अ फर्म, है ना। SQC1 is a recent, लाइक एसएस के बाद एसक्यूसी आए, नाउ दे आर स्टार्टेड, इसलिए एसक्यूसी एक ही आया है ना। अब ये जब आप एसक्यूसी 1 पढ़ रहे हो, ऐसे समझो कि आप सीए फर्म में हो और आप सीए फर्म के पार्टनर हो, आप मैनेजिंग पार्टनर हो जो मैनेज कर रहे हैं, एंड उस हिसाब से आपको सोचना है, क्योंकि ये क्या बोलता है, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बोले तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। जैसे हम बोल रहे हैं कोई भी बिजनेस चलाना है, आप मैकडोनल्ड्स में चले जाओ क्या होता है, डोमिनोज में चले जाओ क्या होता है ना, उनमें क्या है, एक प्रोसेस है, एक पॉलिसीज है ना। दिस इज व्हाट ऑल, दिस इज अ क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम क्या बोलते हैं। आपको किसने बोला, अरे मैं ताज होटल में गया था, सो यू विल अंडरस्टैंड, अरे उसका क्वालिटी तो अच्छा होगा। Why? Because they have policies, set procedures, and you know कि ताज है तो वो इतना मिनिमम तो मेंटेन करेगा ही, राइट। सो उस तरह firm system of quality control should include policies and procedure addressing each of the following elements. So मेरी जो policies है, procedures है firm की, वो मिनिमम फॉलोइंग पॉइंट्स तो उन्होंने कवर करने चाहिए उनके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू इंश्योर अ क्वालिटी ऑडिट। सो फाइनली हमारा डिलीवरेबल क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो जो फॉर्म एश्योरेंस दे रहा है, एश्योरेंस एंगेजमेंट बोले तो एसएएस, एसआरईज, एसआरएस, है ना, और एसएस जो आपने अभी देखे, एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट, है ना, ये सब जो देखे वो सब जो कर रहा है उसको ये फॉलो करना है। इतने एलिमेंट्स आपको इंश्योर करना है। सो कौन कौन से एलिमेंट है, फर्स्ट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। सो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी क्वालिटी, सो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दे शुड एम्बेड, जब भी आपको कोई आपका सीए काम कर रहा है आपके अंडर, आपके आर्टिकल्स काम कर रहे हैं, यू नीड टू बिल्ड, यू नीड टू एम्बोर्ड इन देम कि भाई क्वालिटी इज एवरीथिंग फॉर अस, है ना। सो दिस थिंग्स लीडरशिप हैज टू इंश्योर दैट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड बी इन द फॉर्म की लीडरशिप का बोलना रहना चाहिए कि क्वालिटी इज मस्ट। तो दैट मैसेज शुड गो फ्रॉम द लीडरशिप, टॉप लीडरशिप सब, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच रहता है, ऊपर वाला जैसे सोचता है वैसे नीचे फ्लो होता है। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट एलिमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ फॉर्म विद इन फॉर्म किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज वन एलिमेंट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में लिखा होना चाहिए, ठीक है। डिटेल में हम सेकंड देखेंगे। सेकंड है इथिकल रिक्वायरमेंट। जब पॉलिसीज प्रोसीजर्स की बात करते हो एंड सीए फॉर्म की बात कर रहे हो, तो यू मस्ट हैव इथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड दैट शुड बी योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉलिसी, और दैट शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। जैसे क्वालिटी तो है ही, बट क्वालिटी किससे बनती है, सिर्फ हम क्वालिटी क्वालिटी चिल्ला के नहीं चलेगा ना, हमको ये इंटीग्रिटी, इथिक्स, है ना, इंडिपेंडेंस, ये सब इंश्योर करोगे तब आप क्वालिटी दोगे फाइनली, है ना। सो
हाउ यू विल ब्रिंग क्वालिटी बाय डूइंग दिस ऑल थिंग्स, है ना. सो इथिकल रिक्वायरमेंट डिटेल में हम समझेंगे. इथिकल रिक्वायरमेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर. आप इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, आप बायस्ड हो ना, तो आप ऑडिटर सही नहीं हो, एंड यू कैनॉट ऑडिट, यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑडिट, है ना. सो दैट इज वन. एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट. भाई मैं जब क्लाइंट ले रहा हूं, नया एक्सेप्टेंस कर रहा हूं या कंटिन्यूस कर रहा हूं पुराने क्लाइंट पे, तब मुझे सोचना है, मुझे इवेल्युएट करना है, शुड आई एक्सेप्ट और शुड आई कंटिन्यू विद दिस क्लाइंट और नॉट. व्हाट आर द थिंग्स वी शुड थिंक, कि क्या क्या कंसिडरेशंस मैंने लेने चाहिए, वो हम नीचे देखेंगे. फोर्थ है ह्यूमन रिसोर्सेज. भी ह्यूमन रिसोर्सेज में मेरी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या होनी चाहिए. भी मेरे को सीए लग रहा है, आर्टिकल रेनी लग रहा है, मुझे सेमी क्वालिफाइड लग रहा है, सीए लग रहा है, तो कौन से नॉलेज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये ह्यूमन रिसोर्सेज की मेरे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में होना चाहिए. फिफ्थ क्या है आपका? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. जब एंगेजमेंट हो जाता है, एंगेजमेंट हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस रिव्यूज कैसे हो रहा है, इसके बारे में भी आपके पास क्या होनी चाहिए? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए. एंड लास्ट इज मॉनिटरिंग. ये सब होने के बाद, ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कोई तो मॉनिटर करना चाहिए. जैसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? मॉनिटर करता है किसका भी, कंपनी में क्या हो रहा है, सब इंटरनल कंट्रोल फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो भी कंपनी ने पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाई है वो. वैसे ही मॉनिटरिंग इसकी होनी चाहिए. तो इंटरनल एक मॉनिटरिंग होता है. आईसीआई करता है क्या इसका मॉनिटरिंग? यस. किसके थ्रू? पीयर रिव्यू थ्रू, क्वालिटी रिव्यू थ्रू. क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, और किसका? आईसीएआई का पीयर रिव्यू है. पीयर रिव्यू बोले तो एक सीए फर्म दूसरे सीए फर्म का क्या करता है? रिव्यू करता है कि आपने ये जो क्वालिटीज प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है, ये फॉलो किए या नहीं. क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है जो सिलेक्टिव सैंपल्स करते हैं, और ये फिनेंशियल्स का करते हैं. एक स्टैट्यूटरी ऑडिट आपने सपोज XYZ एंटिटी का किया है, तो उसका साइज अलग अलग फैक्टर से दे सिलेक्ट सैंपल्स एवरी ईयर दे सिलेक्ट सैंपल्स, एंड दे इशू व्हाट दे इशू क्वालिटी पॉइंट्स. इसका रिपोर्ट मिलता है क्या? यस, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का. सो पीयर रिव्यू इज स्पेसिफिक टू फॉर्म, दैट इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल, बट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नाम नहीं देते हुए सब क्वालिटी जो भी फिनेंशियल्स के वो ऑडिट करते हैं, इसमें वो सब बोलते हैं कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कहाँ का इशू आ रहा है कंपनी के, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में कहाँ का इशू आ रहा है कंपनी के, कि भाई ऑडिटर ये ऑडिट फॉलो नहीं कर रहा है. SQC1 में कहाँ इशू आ रहा है. इफ यू सी क्यूआरबी बोलते हैं उसको, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, इसका वेबसाइट है आईसीआई का, उस पर जाओगे आप तो यू विल सी कि उसका एक डिटेल में आपको दिखेगा रिपोर्ट. just let's see, just okay get QRBICAI आप डालोगे, एंड दीज आर सो प्रैक्टिकली ऑल्सो. एंड लॉट ऑफ टाइम क्या होता है, अभी क्या क्वालिटी इश्यूज जब आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो ना, व्हाई आई एम शोइंग, क्योंकि सी एग्जाम में जब आपको क्वेश्चंस आते हैं ना, आप देखोगे पेपर पैटर्न. सो अभी क्या हॉट टॉपिक्स है, अभी क्या इश्यूज चल रहे हैं. जैसे कोविड था पीछे, तो कोविड के क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज आए थे, उस पर आपको क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं. सो सिमिलरली कभी क्वेश्चन थोड़े टफ करने हैं, और सिनारियो अभी क्या हो रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन है. तो ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, और आपको क्या होता है, आपका रिवीजन भी इजी होता है ना. सो करंट इवेंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, और करंट इवेंट्स कहाँ से समझेंगे आपको? इसके रिपोर्ट से. अब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड डिटेल में, ये देखो ये रिपोर्ट है उनका डिटेल में, जिसमें वो सब फैक्टर्स कवर कर ले, आर अप्रोच वगैरह बोल रहे हैं. एंड फिर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेस, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी क्या है, अदर रिलेवेंट लॉज में क्या क्या इश्यूज मिले हैं, वो सब डिटेल में दे वो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है. फाइनल में डिटेल में आपको क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का फंक्शंस क्या है, हु इज अ मेंबर, हु कैन बी मेंबर, व्हाट दे डू, हाउ दे सिलेक्ट सैंपल्स, एवरीथिंग इन डिटेल इज कवर्ड इन फाइनल सिलेबस ऑडिट के. ठीक है ना. तो अभी आपको इतना ही समझना है इनके जो पॉइंट्स है. तो अभी इन्होंने बोला है कि भाई 35 केसेस हमने recommended to ICAI Council जो issues मिले. तो इन्होंने QRB has completed 580 reviews. How many reviews they have done? From 2012-13 to 2021 तक 580 रिव्यू उन्होंने किए. उसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग रिपोर्ट्स दी है. इफ यू सी दे हैव शोन ट्रेंड्स एंड ऑल की नंबर्स कितना, एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने मिले, एंड दिस ऑल. ये आपको सब अभी कोई नेसेसरी नहीं है, आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है. अपने को क्या रिक्वायर्ड है वो मैं बता देता हूँ. ये देखो ये एसेज है अपने SQC1 में, देखो कितने पॉइंट्स है, 36 पॉइंट. सबसे ज्यादा SQC म्हणजे जो क्वालिटी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बोल रहा है, आईसीआई बोल रहा है, वो फॉलो हो नहीं रही है. सीरियस इश्यूज रह गए तो उनको डिबार भी किया जा सकता है. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में देखोगे आप
तो आपका AS3 बोले तो कौन सा कैश फ्लो वाले में सबसे ज्यादा पॉइंट है AS15 एक्चुअल वैल्यूएशन, वो भी काफी लोगों को समझता नहीं है, सो उसमें भी इश्यूज आ रहे हैं। एंड बाकी ऑल इंडेस में है जो आपको अभी रिलेवेंट नहीं है, जब फाइनल में जाओगे तब आपको रिलेवेंट है। कारो शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, लॉग एंड अदर लॉज एंड रेगुलेशंस में क्या कंप्लायंस है। सो व्हाट आई रिकमेंड यू, गो थ्रू दिस एसएस का इश्यूज, एएस एंड आपके जितना भी कारो का है, कंपनीज एक्ट का है, आपको जो रिलेवेंट है दैट यू कैन गो। कुछ डिस्कशन करना है तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया। अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में आप देखोगे तो फर्स्ट है एसक्यूसी। एसक्यूसी में फोकस एरिया क्या क्या रहता है उनको वो दिया है, यहाँ पे है आपको जो आपको फोकस करना है कि भी क्या फाइंडिंग है। तो फाइंडिंग क्या है, नॉट एस्टेब्लिशिंग एन अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी and legal requirements, and that the report issued by the firm or engagement are appropriate in the circumstances। यहाँ पे आप देखोगे तो 80 से काफी कम हुआ है कंपैरेटिव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बट स्टिल इट इज वेरी हाई। सो यहाँ पे आप देखोगे इंडिपेंडेंस पे, नॉट ऑब्टेनिंग एटलीस्ट एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ये भी आपको SQC1 में लिखा हुआ है कि आपको रिटर्न कंफर्मेशंस लेना है कि भाई उन्होंने इंडिपेंडेंस कंप्लाई किया है या नहीं किया है। EQCR है, क्वालिटी रिव्यूअर है, आपको इतना फाइनल में इट इज मोर डिटेल में कवर्ड है चैप्टर में आपको, बट सर्टेन पॉइंट जैसे हम एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस लिखा था, नॉट एस्टेब्लिशिंग प्रोसेस, पॉलिसी नहीं एस्टेब्लिश की है, यहाँ पे इशू आ रहा है एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस का। सो दिस इज लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 का है ना। तो इसमें अलग अलग ये मॉनिटरिंग हमने दे, नॉट अप्रोप्रिएटली परफॉर्मिंग मॉनिटरी ऑफ फर्म सिस्टम है ना। सो दीज आर द पॉइंटर्स। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऐसे 210 का आगे है, जैसे जो जो स्टैंडर्ड अपने को रिलीवेंट है। Yes, we will discuss case scenarios also and while discussing कि भी अपने जो cases है और MCQs जो ICAI दे रहा है will definitely discuss। Question answer जो पास में आया है वो तो हम सब डिस्कस ही करने वाले हैं है ना, because that is our ultimate force। So इसलिए मैंने ये QRB का रिपोर्ट दिखाया है, recent जो changes है, जो issues आ रहे हैं, you can refer there before your like close to your exam जो भी reports है, एक just glance through, और ये आपको रिवीजन भी होता है, अरे हाँ ये था इसमें, सो ये रिवीजन के लिए भी अच्छा है। जस्ट डोंट स्पेंड टू मच टाइम, बट एटलीस्ट एक आधा एक घंटा स्पेंड किया तो आपको ध्यान में रहेगा अकाउंटिंग लॉ, वहां पे क्या क्या चीजें अभी रिसेंट हो रही है। सो जैसे हम आरटीपी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि रिसेंट में क्या क्वेश्चन है, एमटीपी में भी वैसे ही रहता है। इस तरह यू कैन रीड दिस और गो थ्रू है ना, एक हाई लेवल की क्या इश्यूज अभी आ रहे हैं। सो लेट्स नाउ फोकस फर्स्ट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। सो एंगेजमेंट पार्टनर कौन रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना है, एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, overall quality on the engagement। Actions of engagement partner and appropriate messages should emphasize the following points to team members। So leadership engagement partner जो है वो responsibility है किस पे, क्वालिटी ऑन द एंगेजमेंट। जब आप एक ऑडिट जा रहे हो, सपोज XYZ एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो, तो उसका जो एंगेजमेंट पार्टनर है जो साइन करने वाला है फिनेंशियल्स को, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अप्रोप्रिएट मैसेजेस दो टीम मेंबर को फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। क्या क्या मैसेज है, परफॉर्म वर्क that complies with the professional standards and regulatory and legal requirements। So भी AS, SA, laws के हिसाब से आप सब काम कर रहे हो और ICAI के कुछ गाइडेंस और प्रोनाउंसमेंट्स हो तो है ना। नेक्स्ट, कंप्लाई विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अब नीचे जो भी हम देखेंगे अभी, इथिकल रिक्वायरमेंट हो, मॉनिटरिंग हो, परफॉर्मेंस हो, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, उससे आप क्या कर रहे हो, कंप्लाई कर रहे हो। इशूइंग ऑडिटर्स रिपोर्ट्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। भाई मेरे सर्कमस्टेंसेस में मेरा कितना काम हुआ है, मुझे क्या मिला है, एविडेंस मिला है नहीं मिला है, उस हिसाब से व्हाट आई शुड डू, आई शुड इशू ऑडिटर्स रिपोर्ट। लास्ट वन इज द एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल्स। ये भी हमको, सो लॉट ऑफ टाइम दिस इज द मोस्ट एफर्ट्स इज टेकन ऑन दिस, क्योंकि क्या होता है कुछ इश्यूज है, क्लाइंट पे हो, इंटरनल टीम में हो, या आपका सीए सही काम नहीं कर रहा हो, आप आर्टिकल हो, आप क्या बोलते हो, यार मैं सीए का कंप्लेन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो मुझे ही विल टेक माय क्लास है ना, वो मेरे क्लास लगा देगा, ठीक है ना। सो वो फियर नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर विसल ब्लोअर जैसे हम बोलते हैं, देयर शुड बी अ प्रॉपर चैनल टू रेज द कंसर्न्स।
है ना। सो जब पार्टनर मीटिंग करता है, जनरली एक प्लानिंग मीटिंग होती है, उसमें इसने बोलना चाहिए कि भाई अपना क्वालिटी जो है स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये आप फॉलो करो, अपनी जो फर्म्स की पॉलिसी प्रोसीजर है वो फॉलो करो, ऑडिटर्स रिपोर्ट जो अपने को फाइनली एविडेंस मिलेंगे, कंक्लूजन मिलेंगे, उस हिसाब से दो, है ना। आपको कोई भी कंसर्न हो तो यू कैन डायरेक्टली कम टू मी, और देयर आर जनरली बिग फर्म्स हैव द डायरेक्ट कॉलिंग सिस्टम की, जब यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, ये इस पे आप मेल कर सकते हो टू रेज योर concern, and that should have that without fear, they should be able to do that. And last is the fact that quality is essential in performing audit engagement. ये आपने एम्बोर्ड करना है, ये आपको उसको बोलते रहना है कि भाई क्वालिटी इज इसेंशियल, क्वालिटी इज इसेंशियल, है ना। तो उससे क्या होता है, देयर माइंड शुड बी प्रिपेयर्ड, सो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, लीडरशिप विद इन द फर्म। बोले तो कौन, एंगेजमेंट पार्टनर, जो एंगेजमेंट पे पार्टनर है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सेकेंड इथिकल रिक्वायरमेंट, एंड दिस इज द utmost important. If you see, as a chartered accountant, your integrity, your trust, your reputations all depends on this ethical requirement. So ICAI ने क्या किया है, तो standard SQC sets out responsibilities of firm for establishing policies and procedure regarding compliance with relevant ethical requirements. So firm को establish करना है policies and procedure कि भाई ये सब हम follow कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं वो भी आपको policies, जैसे इंडिपेंडेंस का क्या होता है जनरली, व्हाट इज द फर्म्स फॉलोज, एक दो चीज करती है इंडिपेंडेंस के लिए, क्या दो चीज करती है, एक हर एंगेजमेंट के टाइम पे पूछती है फर्म्स कि भाई आप एंगेजमेंट, पूछती बोले तो मेल करती है, रिटर्न कंफर्मेशन लेती है कि भाई आपका कोई रिलेटिव है क्या इसमें, आपने कुछ शेयर्स लिए है क्या। when I was working with the my firms, we used to get, so at after some level we have to put our whole portfolio, जो भी मेरा shares का portfolio है, I have to report that कि भी मेरे पास कौन कौन से, और मेरे पास ही नहीं, जो भी मेरे close relatives है, my wife, my brother, my dependent parents, everybody has to, I have to put that all details, it's respective of वो client हमारे पास है या नहीं है, we have to put everything there. If there is a conflict, we have to say, or we have to take appropriate action if there is a conflict comes, है ना. So that have to be ensured, है ना. So this is what policy and procedure established by XYZ firm, है ना. एक और एनुअल कंफर्मेशन भी रहता है कि भाई एनुअली आप बोलते हो कि आपने जो जो क्लाइंट किए है उस पर आपको कोई इंडिपेंडेंस का इशू नहीं था, आपने आईसीआई के रेगुलेशंस फॉलो किए ना, ऐसे एक एक कंफर्मेशंस होते हैं, रिटर्न लेते हैं एम्प्लॉइज से. दैट इज व्हाट पॉलिसी एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द फर्म. ऐसे 220 सेट्स आउट एंगेजमेंट पार्टनर्स रिस्पांसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एथिकल रिक्वायरमेंट्स. जब भी आप पढ़ोगे किसका रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि सी ऑडिटर कौन होता है, हमने देखा ऑडिटर कौन है, फर्म का एंगेजमेंट पार्टनर है. सो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है, एंगेजमेंट पार्टनर पे आती है ना. सो हर चीज किसको इंश्योर करना है, लॉट ऑफ टाइम इट इज, दैट्स व्हाई एंगेजमेंट पार्टनर इशू है, क्योंकि एंगेजमेंट जो हैंडल कर रहा है ना उसका है, फर्म तो कर देंगे, सब पॉलिसीज लगा देंगे, प्रोसीजर लगा देंगे, बोल देंगे इथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करना है, एवरीथिंग फर्म विल मेंशन, बट एंगेजमेंट पार्टनर हैज टू फॉलो दैट. एंगेजमेंट पार्टनर ने इग्नोर किया तो नीचे वाले तो करने ही वाले. सो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, ये सबके एंगेजमेंट पार्टनर को दी है, जो साइन करने वाला है आपका फिनेंशियल्स, जो आपका एंगेजमेंट पार्टनर है ना. रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑर्डिनरी कंप्लाइज ऑफ कोड ऑफ इथिक्स फॉर द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, IASB कोड रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. ICAI के भी कोड है अपने, कोड ऑफ इथिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो अपने को फॉलो करने हैं. द कोड्स एस्टेब्लिश फॉलोइंग एज ए इथिकल रिक्वायरमेंट. सो कोड क्या क्या बोलता है कि आप इथिकल होना चाहिए, बोले तो क्या क्या होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटीग्रिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल. आप में इंटीग्रिटी होनी चाहिए तभी आप इथिकल हो. सो कोड्स एस्टेब्लिशन कि भी आप में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपने ऑनेस्ट होने की, जो सही है वो सही का साथ देने की आप में क्वालिटी होनी चाहिए. सेकेंड ऑब्जेक्टिविटी, भाई विदाउट फेवरेटिज्म और वन साइड के, और फेवरेटिज्म टू वन साइड, है ना, वो देना नहीं चाहिए. अपने आपकी जो डिसीजन है वो ऑब्जेक्टिवली लेने चाहिए. ऑब्जेक्टिवली लेने चाहिए बोले without favoring anybody or any side, है ना, you should have that. Third, प्रोफेशनल कंपटीशन है. आप बोलोगे सर ये इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी कैसे हम, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो इट्स अ बिहेवियरल अगेन, है ना. सो यहाँ पे काफी चैलेंजेस होते हैं, बट योर बिहेवियर, योर एक्शंस कैन स्पीक कि भी आप इंटीग्रिटी से काम कर रहे हो क्या नहीं, आप ऑब्जेक्टिविटी. और ये प्रूव करने के लिए आपको क्या रहते हैं, आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस हेल्प करते हैं. भाई जब मैंने काम किया ना, तब मैंने ऐसा नहीं किया कि इंपेयरमेंट आ रहा था, गोइंग कंसर्न आ रहा था और मैंने बोला ही नहीं, तो वो कैसे आप प्रूव करोगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे. देख भाई, तो आपका एएस क्या बोलता है, ये काम करना है, आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऐसे क्या बोलता है, ये काम करना है,
मैंने ये काम किया, मुझे ये कंक्लूजन मिला, मैंने ऐसा कंक्लूजन लिया और मैंने किसको भी फेवरिज्म दिया नहीं, मेरे को नहीं दिखा कोई इशू, दैट्स व्हाई आई एम क्लियर, देन यू कैन प्रूव यू आर ऑब्जेक्टिवली डन योर वर्क, है ना। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, जो भी प्रोसेस फॉलो करते हो, इफ यू फॉलो दैट प्रोसेस देन यू कैन से कि आई हैव डन माय ऑडिट ऑब्जेक्टिवली विदाउट गिविंग एनी, एंड इंटीग्रिटी से किया है, एंड मैंने पूरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर लगाया हुआ है, देन यू कैन प्रूव दैट, है ना। सो ये भी आपको करना है कोड ऑफ इथिक्स के हिसाब से, कि भी आपको इथिकल रिक्वायरमेंट में ये भी आता है कि आपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, जिसको आप लोगों को भेज रहे हो वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, उन्होंने ड्यू केयर ली है ऑडिट करते समय, दैट इज व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ इथिकल। डी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी आपने देखा होगा सभी, अभी आपको एलओडीआर का रिक्वायरमेंट, एलओडीआर इज व्हाट, जब सेबी जो है ना, लिस्टिंग रेगुलेशंस जो है सेबी के, जो लिस्टेड एंटिटीज को फॉलो करने हैं, उसमें अनपब्लिश्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम जिसको बोलते हैं ना, उसमें तो सबसे बड़ा फाइन है। सो अनपब्लिश बोले तो क्या है, सपोज आपको पता है कल जाके चलो XYZ कंपनी है और वो कल है ना बड़ा स्टोर खोलने वाली है, सपोज कल, ये आपको पता चल गया, तो आप क्या करोगे, पहले दिन क्या करोगे, शेयर्स बाय कर लोगे। सो वो अनपब्लिश होने की वजह से आपने वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपने शेयर्स बाय कर लिया, आपने प्रॉफिट किया, तो दैट इज नॉट अलाउड एज पर सेबी, है ना। और एलओडीआर रेगुलेशंस में वो सब मेंशन किया हुआ है। सिमिलर वे ऑडिटर हैज टू, क्योंकि ऑडिटर के पास काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी रहती है ना, एज ए इथिकल रिक्वायरमेंट इट इज बेसिक थिंग इथिकली, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन एंटिटी के बारे में, आप बिजनेस प्रोसेस पता रहती है कंपनी की, कुछ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस रहती है जो कंपनी के सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, यू कैनॉट शेयर, यू कैनॉट डिस्क्लोज दैट कॉन्फिडेंशियलिटी, यू हैव टू मेंशन और मेंटेन, सॉरी, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इथिकल रिक्वायरमेंट। एंड लास्ट इज प्रोफेशनल बिहेवियर। भाई आप जब भी बिहेव करो, जिससे बात कर रहे हो, आपके जूनियर सीनियर, आपके क्लाइंट, जब भी आप, जैसे आपको झगड़ा नहीं करना है जाके, नहीं नहीं तुमने डेटा देना ही है, और अपने को प्रोफेशनल बिहेवियर से प्रॉपरली सिस्टम से काम करना है, कॉम्पिटेंस रखना है, ड्यू केयर लेना है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, ऑब्जेक्टिव एंड इंटीग्रिटी रखनी है जब अपन काम कर रहे हैं, किसको फेवर नहीं देना है, किसको वन साइड नहीं करना है। दिस इज ऑल इथिकल रिक्वायरमेंट एंड दिस इज मस्ट। अब देखोगे तो इंस्टीट्यूट में आप, सो अकॉर्डिंग टू मी, फाइनल में आपको सीए फाइनल में ऑडिट में आईसीआई के कोड ऑफ कंडक्ट का थोड़ा सा कवरेज किया हुआ है कि आप फेल करते हो तो क्या क्या आपको है, बट अदरवाइज ये इतना अभी तक अपने को आफ्टर मेंबर्स, अभी इंस्टीट्यूट ने चालू किया है CPRs, if you know minimum hours you after clearing also you have to get updated yourself. Now there is a compulsory CPRs, I think 2 or 6 hours something, I don't remember, you have to do ethical requirement का, म्हणजे ethics related जो CPE है, CPE क्या रहते हैं कि भी आप मिनिमम अपडेट्स लेते रहो हर साल, 15 घंटा 16 घंटे का आपने रेगुलर अपडेट्स लेते रहनी चाहिए। तो उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने बोला इथिक्स को 2 से 4 घंटा या 6 घंटा कुछ तो, कि भाई आपने इथिक रिलेटेड ट्रेनिंग या सेशंस अटेंड करने चाहिए, मिनिमम 2 से 4 घंटा कंपलसरी, है ना। सो नाउ फोकस, एंड मेनी इंस्टीट्यूट्स और मेनी अदर चैप्टर्स लाइक Canada हो ये, so they are also giving more importance to this ethical requirement, because auditor का सब कुछ ये ethical है, auditor ethical नहीं है, independence, confidentiality, professional behavior, objective integrity, then nobody will trust you, है ना, nobody will trust your financials. Auditors should be independent of the entity subject to audit. The code describes independence as comprising of both इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। सो इथिकल रिक्वायरमेंट में ये 5 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इथिकल रिक्वायरमेंट जो है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर है। सो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, इंडिपेंडेंस इज अ कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर। सो माइंड का कंडीशन कि भाई आप जब कोई भी रिपोर्ट साइन कर रहे हो, कोई भी ऑडिट कर रहे हो, कोई भी कंक्लूजन कर रहे हो, इट इज कंडीशन ऑफ योर माइंड एंड पर्सनल कैरेक्टर। भी पर्सनली ऑल्सो यू शुड थिंक, यू शुड नॉट, ऑब्जेक्टिविटी होना जरूरी है जब आप ऑडिट, म्हणजे फेवरेटिज्म इन्फ्लुएंस नहीं करना है आपको। तो एक बार माइंड से भी होना चाहिए और पर्सनल कैरेक्टर से भी आपको इंडिपेंडेंट होना है। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द superficial and visible standards of independence which are sometimes imposed by law. So law भी आपको बोलता है कि भाई आप इंडिपेंडेंट हो क्या, जैसे
आपका है ना, जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, अपन देखेंगे डिटेल में वो। तो एक कंडीशन है कि आप मिनिमम आप शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते हो इतने रुपए के, आप तो एक भी नहीं रुपए, आपके रिलेटिव 1 lakh. 1 लाख के ऊपर नहीं कर सकते, राइट। सो दूसरा क्या है, आपका कोई रिलेटिव है तो आप नहीं कर सकते हो, आपके कोई बिजनेस रिलेशन है तो आप नहीं कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट, ये इंडिपेंडेंस के लिए है कि भाई आप ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट नहीं कर पाओगे 140. इफ यू हैव दिस, है ना। सो ये क्या है, इम्पोज बाय लॉ है। सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि इट शुड नॉट बी कंफ्यूज कि भी आपको कंपनीज एक्ट बोल रहा है तो आपको फॉलो करना है ना। सो दे आर नॉट सेइंग इट इज जस्ट टू एक्ट और सुपरफिशियल और विजिबल स्टैंडर्ड भी एक्ट ने बोला मैंने इतना कर दिया। इट शुड बी बाय माइंड एंड अपीयरेंस एंड पर्सनल 62. कैरेक्टर आल्सो। सो ये जो दो है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अफेयर्स, ये दो वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें 74. कंफ्यूजन हो सकता है आपको। माइंड बोले तो क्या, state of mind that permits the provision of an opinion without being affected by influences, allowing an individual to 82. act with integrity, exercise objectivity and professional skepticism. So आपका माइंड है ना, वो क्या हो गया है, अपन बोलते हैं ना माइंड को क्या हो गया है, माइंड भर गया है आपका, इन्फ्लुएंस हो गया है किससे, कुछ चीजों से, जैसे स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस। सो आप इंडिपेंडेंस माइंड कब होंगे, जब आपका माइंड इन्फ्लुएंस नहीं है कोई प्रोविजन से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पहले, X is paying me ₹1 crore fee, but my audit work should not be influenced by it. So suppose आपके फर्म का टोटल रेवेन्यू है 1.5 करोड़ का, और आपका एक ही क्लाइंट है जो आपको 1 करोड़ का फीस दे रहा है। बताओ मुझे, विल यू बी इंडिपेंडेंस बाय माइंड, whether you can exercise objectively, integrity, professional skepticism, ये सब अप्लाई करोगे क्या? No. आपका माइंड, इट इज नॉट ए इंडिपेंडेंस, इट विल बी इन्फ्लुएंस। यार ये क्लाइंट को सपोज मैंने क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दिया, इसने मेरे को निकाल दिया, तो यार मैंने क्लाइंट को ऐसा इंफॉर्मेशन मांग लिया इतना सारा, तो वो मुझे रखेगा क्या नहीं रखेगा, वेदर आई विल कंटिन्यू एज ऑडिटर और नॉट। सो दिस इज बियॉन्ड योर, रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। अभी कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं लिखा है ऐसा, है ना। कंपनीज एक्ट में है ऑडिट नॉन ऑडिट सर्विसेज का कितना फीस है, बट ऐसा स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का नहीं बोल रहा है वो। सो दैट्स व्हाई इट इज बियॉन्ड द लॉ कि भाई आप इंडिपेंडेंट माइंड से होना चाहिए आपके क्लाइंट्स के हिसाब से। इवन इंस्टीट्यूट रेगुलेट्स दिस कि भाई आपकी फीस एक क्लाइंट से ज्यादा हो तो हाउ यू आर मेंटेनिंग योर इंडिपेंडेंस, है ना। इट्स रियली चैलेंजिंग। सो दिस इज व्हाट इंडिपेंडेंस बाय माइंड, कि आपका माइंड इन्फ्लुएंस हो गया कुछ चीजों के वजह से, कुछ फेवर के लिए। सपोज आपको रोज क्लाइंट गिफ्ट दे रहा है, सपोज आप होटल इंडस्ट्री कर रहे हो, ताज का ऑडिट कर रहे हो, क्लाइंट बोलता है चलो सर आज आप है ना ये ताज में रह जाओ, आप वो ताज में रह जाओ। सपोज आप डोमिनोज मैकडोनल्ड्स कर रहे हो और आप रोज उसको, वो ही इज गिविंग यू सम फेवर और ही इज गिविंग सम, आपको फ्री दे रहा है रोज। सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू बी इंडिपेंडेंस बाय माइंड? नो। सो दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, कि भी आपका माइंड इन्फ्लुएंस ना हो, so that you cannot exercise your objectively professional skepticism or integrity, है ना। So it is not allowed, it influences you following that thing. That is what independence of mind. Independence in appearance, यहाँ पे जो सामने दिखता है, the avoidance of the facts and circumstances that are so significant that a third party would reasonably conclude that auditor's integrity, objectivity and professional skepticism had been compromised. सपोज मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा, सो रादर देन भाई बोलते हैं यहाँ पे, दोस्त भी हो सकता है बट लीगली रिलेटिव के बारे में। सो मिस्टर एबीडी is the MD of company ETC Pro and audited by EBD, ABD and ABD are brothers. यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख रहा है सबको, किसको भी, कि भाई तुम भाई हो तो कैसे तुम ऑब्जेक्टिवली या इंटीग्रिटी से या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से ऑडिट कर सकते हो। सो दिस इज द इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। भाई आपका कोई रिलेटिव्स है, आपका कोई और रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन है आपकी सपोज, सो क्या हुआ, आप इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस है ही नहीं, आपके पास कंपनी के काफी, आप इन्वेस्टर हो कंपनी के, सो है क्या, नहीं, आपका क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट है उसमें, है ना। सो दिस इज व्हाट इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। Independence of auditor has not only exist in fact but also appear to exist to all reasonable person. भाई मैं सिर्फ पेपर पे दिखा रहा हूँ, मैं मेरा ना फीस कम है, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, बट ये सबको दिखना चाहिए, ये प्रॉपरली वहां पे आप जब काम कर रहे हो, जब समझना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, आप ऑब्जेक्टिवली थिंक कर रहे हो। सो ये क्यों ऐड किया है उन्होंने लाइन, अंडरस्टैंड, बिकॉज यू विल से आई वाज ऑब्जेक्टिवली डूइंग माय वर्क,
I don't have any independence issue of independence of mind or independence of appearance. आप देख लो, सब चेक कर लो, है ना. सो बट फिर आपने ना वर्क पेपर देखा, और वर्क पेपर में बोले तो किसमें, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो आप आगे देखेंगे उसमें आपको दिखा कि अरे इसने तो एसए फॉलो ही नहीं किया, एएस फॉलो ही नहीं किया, है ना. सो क्यों नहीं किया, क्या इश्यू था. अरे मैं ना 10 साल से वो क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, मुझे सब पता है. ऐसा चलेगा क्या, नहीं. सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, इट शुड नॉट बी ओनली इन फैक्ट. भी पेपर पे सब दिख रहा है आप इंडिपेंडेंट हो, बट सबको दिखना चाहिए, एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्सन, बेस नॉर्मल पर्सन को समझना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, आपका जो भी दिमाग लगा रहे हो इंडिपेंडेंटली. Auditor must be fair and must not allow prejudice or bias to override his objectivity. Auditor should maintain impartial attitude, both be and appear to be free of any interest which might be regarded as being incompatible with the integrity and objectivity. So finally मुझे क्या करना है, मैं integrity के हिसाब से objectively, है ना, without favoring anybody, है ना, honest, विदाउट फेवरिंग एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगा के मैंने ऑडिट करना चाहिए. ये नहीं कर रहा हूं, इससे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसको इन्फ्लुएंस हो रहा है, सो मेरा इंडिपेंडेंस क्या हो गया, हैम्पर हो गया. एंड इट शुड बी रीजनेबल कि एवरी पर्सन शुड बी एबल टू सी कि भी हुआ है या नहीं हुआ है, एंड आई एम रीजनेबली वर्किंग. एंड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड कि आप सब ठीक दिख रहा है, बट माइंड से आपका इश्यू है कि आपको इतना फेवर मिल गया कि आप इतने बर्डन में हो कि आप दे ही नहीं सकते, ऑब्जेक्टिवली काम ही नहीं कर सकते. ठीक है. दिस इज वॉट इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रोविजन. यहाँ पे क्वेश्चंस भी काफी बार आते हैं SQC1 में. ठीक है. सो जस्ट अ मिनट एंड वी विल फिनिश. ठीक है. हम थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस देख लेते हैं क्विकली, एंड सो इंडिपेंडेंस अपना खत्म हो जाता है. एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एंड अदर फोर्स विल सी टुमारो, एंड फिर हम ऐसे 210 जो है आपका वो हम कल खत्म करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन आंसर वी विल डू. ठीक है ना, मॉड्यूल से एंड मंडे सॉरी अगेन. ठीक है. सो लास्ट सेक्शन, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस बोले तो जब आप इंडिपेंडेंट नहीं हो बाय माइंड और बाय अपीयरेंस, है ना, कब आपका इंडिपेंडेंस डैमेज होता है या कब आपका इंडिपेंडेंस को हैम्पर होगा. दीज आर सर्टन थ्रेट्स. थ्रेट्स बोले तो इसको धोखा है आपके इंडिपेंडेंस को. बोले तो आप इंटीग्रिटी से, ऑब्जेक्टिविटी से या प्रोफेशनल स्केप्टिज्म से काम नहीं करोगे. कब नहीं करोगे, ऐसे 6-5 सिनारियो स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं, एंड यू हाउ टू इंश्योर. सो जब आप ऑडिट कर रहे हो ना, तो आपको है ना, आप क्वालिफाइड हो या डिसक्वालिफाइड हो, ये तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखना ही रहता है ना, वो तो अपॉइंटमेंट के पहले ही आप देख लोगे. प्लस आपको क्या करना है एज ऑडिटर, जब आप क्लाइंट शुरू कर रहे हो, आपको ये सब पॉइंट्स भी ध्यान रखना. भी मेरा सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है, मेरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो नहीं है, मेरा एडुकेसी थ्रेट तो नहीं है, फेमिलियरिटी थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन. सो ये हम सब आपको क्या करना पड़ता है, अगेन डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, इवेल्युएट करना पड़ता है कि वेदर माय इंडिपेंडेंस इज डैमेज, देयर इज एनी थ्रेट टू माय इंडिपेंडेंस. सो ऐसे कैसे होता है जनरली, वी पुट कि भी सेल्फ इंटरेस्ट, तो हम डालते भी टीम मेंबर कौन कौन है, उसके बाद कुछ शेयर्स है क्या, उसका कोई लोन दिया हुआ है क्या, उसने कुछ गारंटी दी हुई है क्या, हाँ नहीं है ना, तो उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नहीं है. सो वी जस्ट नॉट सी कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो रहा है, वी हैव टू सी बाय माइंड अपीयरेंस से भी वो कहीं इंडिपेंडेंस को थ्रेट नहीं है, डैमेज नहीं हो रहा है या हैम्पर नहीं हो रहा है. सो फर्स्ट वन इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. बोले तो पार्टनर और एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट. कब, जब आपका कुछ डायरेक्ट फाइनेंशियल है, आपने लोन दिया हुआ है, गारंटीज दी हुई है, दिया है या लिया है. सपोज आपको आपने दिया है और कल जाके आपने फाइनेंशियल में क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया कंपनी के, है ना, और कंपनी को कोई लोन ही नहीं दे रहा है, कंपनी को कोई बिजनेस ही नहीं दे रहा है, और रेपुटेशन खराब हो गई, कंपनी डूब गई, आपका क्या हो गया, आपका भी पैसा गया ना. तो आप कर पाओगे क्या, ऐसा नहीं कर पाओगे. पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, भाई आपको नौकरी मिलने वाली है कंपनी की, कंपनी ने बोला ये साल का फाइनेंशियल साइन कर दे, उसके बाद क्या तू मेरे यहाँ जॉब पे आ जा. कैन यू डू इंडिपेंडेंटली, इंटीग्रिटी से, ऑब्जेक्टिविटी से, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगा के ऑडिट? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई दैट इज थ्रेट टू द योर इंडिपेंडेंस. डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट फीस, जैसे मैंने बोला अपने इंडिपेंडेंस इन माइंड, भाई मुझे इतना इंटरेस्ट है, मेरे जो फीस है, मेरी डिपेंडेंसी है वो क्लाइंट की, है ना, तब भी मेरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है. ठीक है. सो ये सर्टेन एग्जांपल जहां पे आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपको फर्म को, आपके पार्टनर्स को, है ना, तब क्या होगा, आपको थ्रेट टू इंडिपेंडेंस हो जाएगा. यू कैन नॉट एक्ट इंटीग्रिटी से, ऑब्जेक्टिविटी से या प्रोफेशनल से. आपको क्वेश्चन आता है कि इंडिपेंडेंस से नहीं बोले तो क्या, मेरे को इन्फ्लुएंस हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज मेरी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल. सॉरी, डिस्क्वालिफिकेशन है ये तो. डिस्क्वालिफिकेशन
हाँ, सो डिस्क्वालिफिकेशन तो है ही, प्लस ये सब इवेल्युएट अपने को करना है। डिस्क्वालिफिकेशन यू आर सेइंग कंपनीज एक्ट का ना? Yes, yes. हाँ हाँ, तो वो तो है ही, बट ये क्या बोल रहा है, एक्ट के बियॉन्ड यू हैव टू सी, एंड यू हैव टू सी दिस थ्रेट्स आर इम्पैक्टिंग यू और नॉट, एंड इफ थ्रेट्स आर इम्पैक्टिंग यू हैव टू सेफगार्ड, है ना? सेफगार्ड बोले Independence तो नहीं आपको होगा. अलग अलग, भाई वो पार्टनर का इंटरेस्ट है क्या, तो वो पार्टनर नहीं करेगा, या फर्म का इंटरेस्ट है फर्म नहीं करेगा, या टीम मेंबर का है, सपोज कोई रिलेटिव काम कर रहा है तो वो टीम मेंबर को निकालो, दूसरे को लगाओ, है ना? या आप अकाउंटिंग काम कर रहे हो, सो नेक्स्ट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट, भाई आप ही ऑडिट कर रहे हो और आप ही रिव्यू कर रहे हो, जैसे रिव्यू ऑफ जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन प्रीवियस ऑडिट और ऑडिटर वाज सीनियर एम्प्लॉय और डायरेक्टर। एक तो आप खुद सीनियर एम्प्लॉय थे कंपनी के, या आप डायरेक्टर थे, या आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, तो आप खुद का ही काम खुद रिव्यू कर रहे हो, खुद ही ऑडिट कर रहे हो ना, सो दैट्स व्हाट सेल्फ रिव्यू थ्रेट मींस। नेक्स्ट इज सो performing services which are subject to matters of audit like accounting work, auditor was recently director and employee, ऐसा कुछ हो तो आप क्या कर रहे हो, आपको थ्रेट है, तो इसमें हम क्या इवेल्युएट करते हैं, भी मेरा कोई एम्प्लॉय जाके वहां पे काम तो नहीं कर रहा है, या मेरा जो मैंने जो वहां का कोई एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे ज्वाइन किया और वो ऑडिटर बोल के काम कर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाएगा। सो दिस ऑल आर इवेल्युएटेड। जब हम असाइनमेंट लेते हैं और चालू करते हैं, हम देखते हैं कि थ्रेट्स तो नहीं है मेरे कोई इंडिपेंडेंस को, सो पहला मैं देखता हूँ सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है, सब पार्टनर्स को पूछता हूँ, सब एम्प्लॉइज को पूछता हूँ, सेल्फ रिव्यू तो नहीं है, ऐसा कोई एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं किया है, या हम अकाउंटिंग काम कर रहे हो, या जो हम ऑडिट करने वाले वो, सो जैसे सपोज इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स है, ओके, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो मेथड है, वैल्यू इन यूज एंड एनआरवी, है ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विचएवर इज हायर आप कॉस्ट से कंपेयर करोगे और फिर बोलोगे इंपेयरमेंट करना है क्या नहीं असेट्स का, है ना? सो तब आपको क्या लगेगा, एनआरवी बोले तो वैल्यूएशन लगेगा या वैल्यू इन यूज लगेगा, सपोज आप ही कैलकुलेट कर रहे हो और आप ही उसका ऑडिट कर रहे हो, सो देयर इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट, है ना? तब आप अपने ऑब्जेक्टिवली इंटीग्रिटी से ऑडिट नहीं कर पाओगे, ऑनेस्टी से ऑडिट नहीं कर पाओगे, सो वहां पे चैलेंज है, कभी आप ही वैल्यूएशन रिपोर्ट दे रहे हो और आप ही उसका ऑडिट कर रहे हो, तो यू कैन नॉट वर्क इंटीग्रिटी से, ऑब्जेक्टिविटी से, है ना? एडवोकेसी थ्रेट्स, auditor promotes client's opinion such that objectivity is compromised, clients advocate in litigation deals in shares of the entity, suppose client बोल रहा है कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप मेरा शेयर्स लो, मेरा ये प्लान है वो प्लान है, और ऑडिटर उसके शेयर्स लेके बैठा है, या ऑडिटर उसका एडवोकेट है, एडवोकेट बोले तो जैसे सपोज जीएसटी का, डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ केसेस चल रहे हैं और ऑडिटर उसका क्या कर रहा है, लिटिगेशन लड़ रहा है, वहां पे उसको डिफेंड कर रहा है, उसको डिफेंड कर रहा है, तो तब आप ऑडिट कर रहे हो, तो आप कंटिंजेंट लायबिलिटी में उसको दिखाओगे क्या, नहीं दिखाओगे, आप क्या बोलोगे, यार मैं खुद ही उससे लड़ रहा हूं, मैं उसके ऑब्जेक्टिवली मैं खुद ही दिखा दूंगा तो कैसे वो जीतेगा केस, सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, आप ऑब्जेक्टिवली या बायस से आप बायस हो जाओगे क्लाइंट के टुवर्ड्स, और आप उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजंस उसके बारे में प्रॉपरली कंक्लूजन नहीं करोगे। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स सो दैट यू कैन रिमेंबर, इस पे क्वेश्चंस आए हैं, काफी बार आए हैं, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस इन माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑन अफेयर्स, थोड़ी बार कभी कम आए हैं, बट इस पे काफी बार आए, एडुकेसी थ्रेट्स क्या है, या एग्जांपल देते हैं ये कौन से थ्रेट है, करेक्ट इनकरेक्ट में भी आ जाता है, एमसीक्यूज में भी आ जाएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? नेक्स्ट वन इज फेमिलियरिटी थ्रेट्स, बोले तो आप एक मेरे को पहचानते हो, सो नाम से ही आता है, एडुकेसी बोले तो आप उसका ओपिनियन को प्रमोट कर रहे हो, सेल्फ रिव्यू आप ही कर रहे हो, आप ही रिव्यू कर रहे हो, आप ही ऑडिट कर रहे हो, आपका सेल्फ इंटरेस्ट बोले तो आपका कोई इंटरेस्ट है, फेमिलियरिटी बोले तो आप जान पहचान के हो, सो ऑडिटर फॉर्म्स रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स एंड आर टू सिंपैथेटिक अबाउट क्लाइंट्स इंटरेस्ट, आपका क्या हो गया, आप 10 साल से ऑडिट क्लाइंट कर रहे हो, रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्यों आया, टू अवॉइड फेमिलियरिटी थ्रेट्स, बिकॉज दिस वाज द चैलेंज, एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर जो कंपनीज एक्ट में आया है ना, कि भी 10 साल के बाद आपको ऑडिटर चेंज करना है, दैट टू अवॉइड फेमिलियरिटी थ्रेट्स। फॉर्म क्या करता था, पार्टनर को रोटेट करता था, ये कहाँ लिखा है, एसक्यूसी 1 में वापस लिखा है अभी, कि आपको सपोज रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है वो क्लाइंट को, तो आपको हर 7 साल के बाद पार्टनर चेंज करना है, वो पार्टनर 7 साल के ऊपर काम नहीं कर सकता एक क्लाइंट पे, ये कहाँ लिखा है, एसक्यूसी 1 में लिखा हुआ है ना? तो और इवन आपके ऐसे 300 या उसमें लिखा हुआ है एक जगह, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन कितने साल रखना है, पार्टनर कितने साल रहेगा, और ये पार्टनर का तो इसमें लिखा हुआ है ना? तो आपको फेमिलियरिटी थ्रेट्स भी आप इतना सिंपैथिक हो जाते हो, आपको कोई एक तो रिलेटिव है आपका, है ना, क्लोज रिलेटिव ऑफ टीम मेंबर इज अ सीनियर एम्प्लॉय इन कंपनी, लॉन्ग एसोसिएशन विद द क्लाइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी ऑफ फ्रॉम क्लाइंट, आप इतने फेमिलियर हो जाते हो, वो आपको रोज गिफ्ट भेज रहा है, दिवाली गिफ्ट दे रहा है, क्रिसमस का गिफ्ट दे रहा है, न्यू ईयर गिफ्ट दे रहा है, आपका बहुत सालों से आप काम कर रहे हो, या आपका कोई क्लोज रिलेटिव उधर काम कर रहा है, तो आपका क्या होगा, फेमिलियरिटी थ्रेट हो जाएगा, एंड यू कैन फ्रॉड नॉट तो छुपा ऑब्जेक्टिवली, लेगा ना फिर, सॉरी फ्रॉड तो छुपा लेगा तभी।
हाँ हाँ, सो आप सिंपैथिक हो जाते हो ना, तो उसमें क्या है, आप ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर सकते, अल्टीमेट आपका इंडिपेंडेंस हैम्पर हो गया, तो बोले तो क्या, आप ऑब्जेक्टिवली इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म नहीं लगा रहे हो। तो ये सब चीजें हो जाती है जब आपका क्लोज रिलेटिव काम कर रहा है, आप काफी साल से क्लाइंट पे काम कर रहे हो, इसलिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर आया हुआ है कि भी फैमिलिटी हो गया तो आप खत्म हो गया। इंटिमिडेशन, सो भाई आपने ना इंश्योर कर लिया कि अब मेरा है ना सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलिटी, ये कोई थ्रेट नहीं है, बट क्लाइंट क्या बोल रहा है, और ये होता है, दिस इज एक्चुअल हैपेंस। आप क्लाइंट क्या बोलता है, भाई तूने ना ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई किया तो मैं तुझे निकाल दूंगा। अब मैंने बोला ना कि यही ओपिनियन देना है, इतना ही काम करना है, आप है ना ये ब्रांच का ऑडिट नहीं कर सकते हो, आप है ना ये सब्सिडरी का ऑडिट मत करो, आप है ना इन्वेंट्री मत देखो, आप है ना इन्वेंट्री का 20% ही वेरीफाई करो। ये सब क्या है, इंटिमिडेशन, बोले तो क्या, डिस्करेज फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, धमकी देना सिंपली, कि डिटरेट, डिस्करेज ऑडिटर फ्रॉम वर्क ऑब्जेक्टिवली। वो कैसे भी हो, अलग अलग टाइम से, थ्रेट्स टू रिप्लेसमेंट हो, प्रेशर टू रिड्यूस वर्क हो, या जनरली मैनेजर का, सीनियर मैनेजर को कंप्लेंट करो या पार्टनर को कंप्लेंट करो, दिस आर स्टैंडर्ड टैक्टिक्स क्लाइंट्स यूज, एंड दिस इज अ इंटिमिडेशन थ्रेट्स, जहां पे आपका इंडिपेंडेंस क्या होगा, हैम्पर होगा, थ्रेट होगा, डैमेज होगा, बिकॉज यू कैन नॉट देन ऑब्जेक्टिवली वर्क, इंटीग्रिटी से, ऑनेस्टी से, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से आप काम नहीं कर पाओगे, है ना। सो इंटिमिडेशन ये काफी बार होता है कि हम तुमको चेंज कर देंगे, हम अगले साल ऑडिटर चेंज कर देंगे, आपने क्वालिफाई किया तो हम अभी चेंज कर देंगे, आपने कम ज्यादा काम लिया, काम कम करो नहीं तो आपको हम बदल देंगे, ये सब किया तो आपको ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करने दे रहा है, आपको डिस्करेज कर रहा है टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली, then that is a intimidation threat. So these are the 5: self interest, self review, advocacy, familiarity, intimidation threat. We will revise again tomorrow. If you have any questions, we'll again see tomorrow, and बाकी सब हम कल खत्म, सॉरी मंडे को विल क्लोज दिस चैप्टर। जस्ट वन रिक्वेस्ट, गो थ्रू जो भी हमने सीखा है पहले चैप्टर में, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी ऑलवेज वी कैन रिवाइज एंड डिस्कस, ठीक है। From the module itself. हाँ, मॉड्यूल से कर सकते हो आप, है ना, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन, और शुड वी साइन ऑफ फॉर टुडे? प्राजक्ता, कोई क्वेश्चन? No, sir. अंडरस्टूड एवरीथिंग? Yes, sir. Yes. गुड। सो मंडे को हम मिलते हैं विथ मोर Yes, sir. एग्जांपल्स, क्वेश्चन आंसर एंड लास्ट सेक्शन ऐसे 210, ठीक है। Yes, sir. Yes. चलो, मेरी क्रिसमस एवरीवन, गुड नाइट, Yes, Same sir. to you. एंजॉय योर वीकेंड, ठीक है ना। Thank you, sir. चलो, टेक रेस्ट, बाय बाय, Yes, sir. Bye. Good बाय, night. गुड नाइट।